જેને મુક્તિના માર્ગે આગળ વધવું હશે સિન્સિયરલી અને ઓનેસ્ટલી, એને પ્રકૃતિનો ધર્મ, પરમાત્માનો ધર્મ અને પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો ધર્મ, આ ત્રણેય ધર્મ સમજવા પડશે અને ત્રણેય ધર્મોને પોતાની દ્રષ્ટિમાં અલગ અલગ જોવા પડશે, મિક્સ કરવાના નહીં. પ્રકૃતિનો ધર્મ છે કર્મ ભોગવવાનું સાધન માત્ર, એને પછી પુરુષાર્થમાં લગાડવાનું. એનો રોલ શું છે? કર્મ ભોગવવાનું સાધન, કર્મ પતી જાય બાળી નાખવાનું. આ પ્રકૃતિનો રોલ છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો રોલ શું છે? કે પોતાની પાસે જે જ્ઞાન દર્શન છે તે પ્રમાણે મન વચન કાયાની અવસ્થાનો સાર કાઢીને નવા પુરુષાર્થ કરવો. એ પુરુષાર્થમાં નવા કર્મ પણ બાંધી શકો અથવા તો મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક કર્મો પણ બાંધી શકો. ક્યાં સંસારને લાયક અને સહાયક બાંધી શકો, ક્યાં મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક. પણ કર્મ બાંધવાનો ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા પુરુષાર્થ કરવાનો રોલ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો છો. એનો રોલ પરિણામ ભોગવવાનો નથી. સમજી ગયા? પછી સમજાવું છું કે આ બધાનું ડિવિઝનનું મહત્વ શું છે. પહેલા ડેફિનેશન આપું છું. અને આત્માનો રોલ છે કેટાલિસ્ટ, સ્વ પર. એને કર્મ બાંધવાના નહીં અને ભોગવવાના, પણ એની હાજરીમાં કર્મ બંધાય, એની હાજરીમાં કર્મ ભોગવાય. આ ત્રણેયના રોલ પરમાત્માના, પ્રતિષ્ઠિત આત્માના, પ્રકૃતિના, ત્રણેયના રોલ કેવા છે? જુદા જુદા. રોલ જુદા જુદા છે, પણ આપણે પ્રકૃતિનું જે રોલ છે કર્મ ભોગવવાનું સાધન, એ સાધનના 3 પીસીસ છે: મન વચન કાયા. યસ કે નો? મનમાં વિચાર આવે, એ મનની અંદર પાછા 4 ભાગ: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને એટલે પહેલા અંતસ્કરણનો રોલ, પછી સ્પીચનો રોલ અને પછી એક્શનનો રોલ. આ ત્રણે ડિસ્ચાર્જ છે, પરિણામ છે, કર્મફળ છે અને કુદરતી રચના છે. આ ત્રણમાંથી જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ મને થાય છે માનવું, એનું નામ ભ્રાંતિ, એનું નામ અજ્ઞાન. વિચાર મને આવે છે, મારી બુદ્ધિ આવી છે, મારું ચિત્ત આવા ફોટા બતાવે છે, મારો અહંકાર આવી સહી કરે છે, મારી વાણી આવી બોલે છે, મારું વર્તન આવું થાય છે. આ બધી ભ્રાંતિ. બધું થાય છે પ્રકૃતિનું. કોનું થાય છે? અને પ્રકૃતિનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કોણ છે? કુદરત. બનાવનારે એ, ચલાવનારે એ અને અંત લાવનારે. એટલે જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ સાથે આજે મારે એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, મૂળ આત્માએ તો લેવા દેવા નથી, પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્માએ પણ સૈદ્ધાંતિક રીતે લેવા દેવા. માટે પ્રકૃતિના કોઈ પણ ભાગને મારું માનવું, કરતાપણું, માલિકીપણું, ભોગતાપણું એ અજ્ઞાન. પ્રકૃતિ માને અજ્ઞાન નહીં, પણ પ્રકૃતિની ક્રિયાઓને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા માને એ અજ્ઞાન. એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માને પુરુષાર્થ કરવો હોય મુક્તિના માર્ગનો, તો મન વચન કાયાની બધી જ અવસ્થાને માત્ર કુદરતી રચના જોવાની છે. એમાં સુધારવાનું, બદલવાનું, ફેરવવાનું, માફી માંગવાનું એ સબ્જેક્ટ આવતા. અઘરું છે કે સહેલું છે? સમજાય છે? કુદરતી રચના જોવાનું, અને બીજું કુદરતી રચના જોવાનું અને મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક ભાવ કરવાના અને શુદ્ધાત્મા છું એવો
નિશ્ચય કરવાનો. આ બધું કોણે કરવાનું? પ્રતિષ્ઠિત. હું શુદ્ધાત્મા છું, ચેતન છું, અવિનાશી અનંત શક્તિ વાળો છું, એ નિશ્ચય કોણ કરે? પ્રતિષ્ઠાત્મા. મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયકની ભાવના કોણ કરે? પ્રતિષ્ઠાત્મા. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રીતના કોણ જુએ? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. અને મૂળ આત્મા શું છે? કેટાલિસ્ટ. આમાં ગૂંચવાડો થાય એવું ક્યાં છે? પણ લોકોને હું 52 ને મંગળદાસ 6 મહિનાની 6 વર્ષથી સમજાતું નથી. ના સમજાય. આટલું સીધું સાધું છે તો ગોળ 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 કરે. સમજાય છે? સીધી વાતને એવી ટ્વિસ્ટ કરી નાખી અને ટ્વિસ્ટ કરીને પ્રોજેક્ટ કરે કે એ કન્ફ્યુઝ ને સાંભળનારા કન્ફ્યુઝ. સમજાય છે? કારણ કે તમે 3 વસ્તુના ડિવિઝન ક્લિયર કરતા. સમજાય છે? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ પુરુષાર્થ કરે છે અને પ્રકૃતિ એ પુરુષાર્થ કરે છે એવું કે છે નહીં? બે કરે છે, બે કરે છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને પ્રકૃતિ બે પુરુષાર્થ કરે છે. તો ગૂંચવાડું થાય કે નહીં? સમજાય છે? પ્રકૃતિ કુદરતી રચના એટલે કુદરતના ચલાવવાના એ આપણે ચલાવવાની. કુદરત જ ચલાવે. દાદા ભગવાને કહ્યું કે મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. એ ખોટું ને? બોલતા નથી. તો પછી આરતી કરો એને પુરુષાર્થ કેમ કહો છો? એ મનોવચન કાયા કરે છે કે શુદ્ધાત્મા કરે છે? ચરણ વિધિ કોણ વાંચે છે? બોલો ને, પણ મોડેથી બોલો ને. કોણ બોલે છે? હે? બોલે છે પ્રતિષ્ઠાત્મા. પ્રકૃતિ બોલે છે કે પ્રતિષ્ઠાત્મા? બોલો ને. આટલું અઘરું કેમ થઈ ગયું? ચરણ વિધિ કોણ બોલે? પ્રતિષ્ઠાત્મા બોલી શકે? બોલે છે કોણ? મારો પ્રશ્ન એટલો છે, તમે કઈ એડ કેમ કરો છો? મેં શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? ચરણ વિધિ કોણ બોલે છે? બરાબર છે. તમારે શું જવાબ આપવાનો છે? તો પછી કેમ આટલી વાર કરો છો? પણ કેમ? પેલું અજ્ઞાન ભરી ગયું છે એટલે. સીધી વાતનો જવાબ પણ કેટલો વાર લાગે છે આપતા, કારણ કે પેલું ભ્રાંતિ ભરાઈ ગઈ છે. એ ક્રિયાથી પુરુષાર્થ થાય. એક બાજુ મન વચન કાયની અવસ્થા કુદરતી રચના કેવી છે અને પુરુષાર્થ કેવો છે. પછી બદલ થાય કે ના થાય? એ કોઈએ ઊભું કર્યું છે? તમે ઊભું કર્યું છે. તમે સમજ્યા નહીં માટે. યસ કે નો? એટલી બધી ભ્રાંતિ ભરાઈ ગઈ છે. સીધી વાતને પણ અત્યાર સુધી એવી ગોળ ગોળ કરીને ફિટ કરી છે ને, તે અમને કાઢતા કાઢતા દમ નીકળી જાય છે. સીધી વાતને બિલકુલ ફ્રેશ હોય ને જલ્દી સમજી જાય. પણ પેલું ઘૂંટેલું છે ને કે સત સાધન પુરુષાર્થ, શું ઘૂંટ્યું છે? કરવાના પ્રકૃતિને અને પુરુષાર્થ બી કહેવાનું. અને પાછું એવું કહેવાનું કે મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે ને, એવું એ બોલવાનું. અને પુરુષાર્થે બોલવાનું. બોલતા નથી. પર ને પરાધીને બોલવાનું. તો પુરુષાર્થ સ્વતંત્ર હોય કે પર ને પરાધીન હોય? તમે જે બોલો છો એ તો સમજો. રોજ તમે સૈદ્ધાંતિક વાક્ય ચરણ વિધિમાં બોલો છો એને તો સમજો. બીજા કોઈની વાતને ક્યાં સમજ? આપણે જે બોલીએ છીએ એને તો સ્વીકાર કરો. સમજાય છે? પછી વિજ્ઞાન કેવી રીતે સમજાય? એટલી બધી લોકોને ભ્રાંતિ છે. મને એક બરોડાના મહાત્માએ આજથી 20 વર્ષ પહેલાની વાત છે, એને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો મને. જો સાંભળજો.
કારણ કે ઘણા બધાની ભ્રાંતિ જ આ છે. મને એમને કીધું કે દાદા ભગવાને આપણને સત્સાધન આપ્યા છે. શું કીધું? અને માટે આપણે સત્સાધન કરીએ છીએ એ પુરુષાર્થ કહેવાય. બરાબર છે? એમની આજ્ઞા છે. સાંભળજો બરાબર. જે તમે બધા માનો છો અથવા માનતા હતા એ જ કહું છું, હું નવું નહીં કહું. પણ ભૂલ ક્યાં છે મારું કામ છે બધા. ત્યાં મેં જવાબ શું આપ્યો એ આથી 20 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. ત્યારે મેં કીધું તમને ગુરુએ કોઈ આજ્ઞા કરી એને પુરુષાર્થ માનશો ને? બોલતા નથી. કે તમારે 10 વખત લેસન કરીને લાવવાનું તો પુરુષાર્થ કહેશો ને? બોલતા નથી. ના કહેવાય, પણ ભ્રાંતિ- મા બાપે આજ્ઞા કરી તો એ પુરુષાર્થ કહેવાય ને. ભ્રાંતિની ભાષામાં એ કહેવાય, બાકી નહીં. વ્યક્તિએ સિદ્ધાંત બદલી જાય. મા બાપ કે તો પુરુષાર્થ નહીં, ટીચર કે તો પુરુષાર્થ નહીં, દાદા ભગવાન કે તો પુરુષાર્થ. એવું આ પ્રિન્સિપલ છે. પ્રિન્સિપલ આ છે કે મન વચન કહેવાથી કોઈ પણ કહે તો કુદરતી રચના કહેવાય ને. કે વ્યક્તિ પ્રિન્સિપલ બદલી જાય. હું કહું મહાવીરે કરવાનું કીધું પણ પુરુષાર્થ કીધું હોય ક્રિયામાં. એમ કહું છું મહાવીરે કીધું હોય કે તમે આ ક્રિયા કરજો, પણ પુરુષાર્થ કીધું એ બી ખરો, તમે કરો છો એ બી ખરો. મહાવીરે કીધું એ કુદરતી રચના અને તમે કરો છો એ પુરુષાર્થ. ટાઇટલ કેમ લગાવો છો? ભ્રાંતિથી જ બધું ચાલતા હોય. પુરુષાર્થ લગાવો તો બધાને લગાવો. પછી જેની તમે આજ્ઞા પાડતા હોય, બોસે કીધું તમારે આ કરવું પડશે, એ તમારા માટે આજ્ઞા છે તો પછી પુરુષાર્થ માનો. પછી એને બોલતા નથી. આ તો સગવડ્યું. વાઈફ કે શાકભાજી લઈ આવો તો પુરુષાર્થ માનવાનો આપણે, કારણ કે આજ્ઞા જ કરી છે એમને. ના લાવો તો ખાવાય નહીં મળે. આવી ભ્રાંતિ. ને હું સાચું કહું એટલે ગળે ઉતરતું નથી. પણ એક વખત તો એક દિવસ તો 1000 અવતાર પછી પણ સનાતન સત્ય સ્વીકારવું પડશે, મારું સત્ય નહીં. કયું સત્ય? સનાતન. સનાતન કોઈ વ્યક્તિનું હોય? ના હોય. અને વ્યક્તિનું હોય તો સનાતન હોય નહીં? સ્વીકારવું પડે. તમે ભ્રમિત થઈ ગયા છો વ્યક્તિ વિશેષમાં. કુદરતનો કાનૂન તો શાશ્વત છે. યસ કે નો? Yes. એ શાશ્વત કાનૂનને અનુભવી જ્ઞાની પુરુષો અનુભવથી વ્યક્ત કરે છે. એટલે કાનૂન એમનો થઈ ગયો. એમનો થઈ ગયો કાનૂન. એમને તો વ્યક્ત કર્યો. આ સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણ્ય સંયોગો પર ને પરાધીન છે એવું જ્ઞાની પુરુષે કીધું. એ જોઈને કીધું કે ગોખીને કીધું કે વાંચીને કીધું હશે? એમને દેખાયું પોતાના દર્શનમાં કે આ બધું કુદરતી રચના છે, વ્યવસ્થિત છે. એ તમને કીધું, પણ હતું એ કીધું કે એમને બનાવ્યું? કેટલી ભ્રાંતિ. પણ જ્યાં સુધી સાયન્સ ના ખુલે ને, ખુલેલ તો છે પણ આવા કહેનારા કોન્સ્ટન્ટ ત્યાં સુધી એ જ ચાલે છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને શું કહ્યું? કરુણા રાખવા જેવું જગત છે, દંડ કરશો. દંડ ના કરશો, કરુણા રાખો કે છે. પોતે જ પોતાની મિથ્યા, રોંગ, રિલેટિવ માન્યતામાં ફસાયેલા છે. માટે દંડ ના કરશો. શું કે છે? દંડ ના કરશો. ખ્યાલ આવ્યો? કરુણા રાખજો કે ભાઈ આજની તો કાલે સમજે, આજની તો અવતારની તો અવતારે પણ સમજે એની પ્રગતિ માટે. અને સમજે એમાં શું કહીએ છીએ? સનાતન સત્ય સમજે, વ્યક્તિનું સત્ય નહીં. સનાતન સત્ય સમજવામાં તકલીફ પડે. એ તકલીફ પડે. એટલે અનાદિકાળથી આ પ્રશ્ન છે. અને માણસ પોતાના જીવનની અંદર આગળ વધવું
એવું માને છે, પણ આગળ વધવું એટલે શું? ઇઝ અ ફિઝિકલ મેટર. ફિઝિકલ મેટર છે. તમારું જ્ઞાન દર્શન જે રિલેટિવ સત્યને સાચું માનતું હતું એનાથી અપગ્રેડ લઈ જવું અને સનાતન સત્યને માનતું થાય, એને તમે આગળ વધ્યા કહેવાય. આમ ફિઝિકલ તો આગળ વધવાનું નથી. પહેલા રિલેટિવ સત્યને જ આપણે સાચું કાયમી સત્ય માનતા હતા. હવે ખબર પડી કે રિલેટિવ સત્ય તો ટેમ્પરરી છે. વ્યક્તિ બદલાય છે, અવસ્થાએ બદલાય છે. સનાતન સત્ય ક્યારે બદલાતું? એનાથી ઉકેલ આવે, રિલેટિવ સત્યથી ઉકેલ આવે નહીં. રિલેટિવ સત્ય વ્યવહાર પૂરો કરવા માટે છે. તેના માટે છે, એ કાયમી વસ્તુ નથી. પૂરો કરવા માટે આપણને મા બાપ મળે, ભાઈ બહેન મળે, પતિ પત્ની મળે, બાળકો મળે. એ વ્યવહાર કાયમી કરવા મળે છે કે પૂરો કરવા માટે? તો રિલેટિવ સાથે કાયમી હોય? એ હિસાબ પૂરતું હોય. કેવું હોય? હિસાબ પૂરતું. કાયમી તો સનાતન સત્ય હોય કે જે આપણી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. તો પછી આ રિલેટિવ સત્યની દ્રષ્ટિ પછી કેરી ફોરવર્ડ થાય નહીં. જો સનાતન સત્યની દ્રષ્ટિ હોય તો. આ જે વાતને જે સમજવાની છે, આ જે ધારા છે, કારણ કે શરૂઆતમાં તો હું જ્ઞાન શબ્દ બોલતો હતો, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન. પણ પછી એમ થયું કે આ શબ્દ કરેક્ટ નથી, એટલે પછી મેં વિજ્ઞાન બોલવાની શરૂઆત કરી. કારણ કે વિજ્ઞાન પરમેનન્ટ હોય, જ્ઞાન અજ્ઞાન હંમેશા ટેમ્પરરી હોય. તમે રામને માનો તો અજ્ઞાન કહેવાય, આ કૃષ્ણને માને અજ્ઞાન કહેવાય, આ મહાવીરને માને અજ્ઞાન કહેવાય, આ શિવને માને, આ સ્વામીને માને, આ સિમંદર સ્વામીને માને, પેલા દાદા ભગવાનને માને, પેલા માતાજીને માને. કોણ ખોટા? બોલો. પણ જ્ઞાન હંમેશા રિલેટિવ સત્ય હોય, સનાતન સત્ય ના હોય. અને સનાતન સત્ય શું છે? આ બધી માન્યતાઓમાં કે આ બધાની અંદર ચેતન, અવિનાશી અને અનંત શક્તિવાળો શુદ્ધ આત્મા છે. એ શું છે? સનાતન સત્ય. પછી એ રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, મહાવીર હોય, શિવ હોય, સ્વામિનારાયણ હોય, સિમંદર સ્વામી હોય, દાદા ભગવાન હોય કે માતાજી હોય, બધામાં કોમન શું છે? શુદ્ધ આત્મા. એ સનાતન સત્ય. અને આ ટાઇટલ બધા રિલેટિવ સત્ય. અને આખું જગત ફસાયું છે શેમાં? આ ભેદ કેમ પડે છે? ભેદ કેમ પડે છે? રિલેટિવ. સનાતન સત્યમાં ભેદ હોય? ભેદ હોય? અનાદિકાળથી આ થાય છે, અનાદિકાળથી. અને જ્ઞાની પુરુષો, જ્ઞાની ભગવંતો કઈ થાકી ગયા કે એક અવતાર આ વિજ્ઞાન સમજવામાં કાઢ. એક અવતાર. અને તારો સંસાર નહીં બગડે, કારણ કે તારો સંસાર કુદરત ચલાવે છે, તારે ચલાવવાનો નથી. તું એવું માને છે કે હું ચલાવું છું, પણ ચલાવે છે કોણ? માટે એક અવતાર કુદરત ઉપર છોડી દે અને તું તારું વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ પાકું કરવામાં લાગી જાય. બસ એક અવતાર, તો તારું જ્ઞાન દર્શન પાકું થઈ જશે, ડેવલપમેન્ટ પાકું થશે. એ ડેવલપમેન્ટ શું આગલા અવતારમાં કેરી ફોરવર્ડ થશે. આ દેખીતી કે વસ્તુ કેરી ફોરવર્ડ થવાની નથી. સમજાયું? એક મહાત્માએ બહુ સરસ પ્રસંગ પૂછ્યો હતો, જે પ્રસંગ તમે કોઈ દિવસ સાંભળ્યો નહીં હોય, ક્યારેય નહીં સાંભળ્યો. એક મહાત્મા એવું કીધું કે દાદા ભગવાને જ્ઞાન વિધિ આપીને અમને પ્રોમિસ કર્યું છે કે આવતા અવતારમાં અમે તમને મળીશું અને અમે જ તમને ખોળી કાઢીશું. ના સમજાય? બરાબર છે. હવે દાદા ભગવાનનો દેહ વિલય થયો કેટલા વર્ષ થયા? 88, 89, 90.
અને 2000 એટલે 13 વર્ષ એ થયા ને 23 વર્ષ આ કેટલા થયા? 13 ને 23 હે 13 ને 23 36 થયા. આટલું બધું કાચું? વાણિયાની હજુ ખોટું બોલાય ગણતરીમાં. 36 years બરાબર છે. સાંભળજો, આ સમજવા માટે આ કહું છું. મહાત્માઓ પૂછે છે કે જે લોકો હમણાં એક્સપાયર થઈ ગયા છે, દાદાના ગયા પછી 1-2 વર્ષમાં કે 5 વર્ષમાં, સાંભળજો, એનો તો જન્મ થઈ ગયો હશે, યસ કે નો? અને દાદા ભગવાનનો પણ તો હજુ તો 25-30 વર્ષ થયા, દેખાતા બોલતા નથી. નહીં બોલો ને. જે મહાત્મા એક્સપાયર થઈ ગયા એ પણ જન્મ્યા હશે, દાદા ભગવાન પણ જન્મ્યા હશે, તો આપણને દેખાવા જોઈએ ને. બોલતા નથી. એટલો પ્રશસ્ત રાગ શ્રદ્ધાનો વિષય ને, એટલે કે કોઈ લોજિક નહીં, માત્ર માનવાનું. અને કોઈ પૂછે એટલે માથું કંજવાળવાનું, કોઈ આન્સર જ નહીં. વિચાર કરો. આ તો તમને સારું છે, પૂછનાર નથી. અમને તો પૂછનાર મળે છે, પણ કુદરત અમને દર્શન આપ્યું છે એટલે અમને વાંધો નથી. પણ તમારે તો માતાના વાળ અધર થઈ જાય પૂછે તો. તમારે એમ કહું વાંચી નહીં જ કાલે, તો બીજું તમે શું કહો? हम कहीं अवतारों से सनातन सत्य को समझने के लिए घूम रहे हैं. सभी को समझना तो है, मगर रिलेटिव सत्य की जो पकड़ है, नंबर 1. दूसरा, रिलेटिव सत्य की पकड़ को पक्का करने वाले हैं, चाहे आम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं और साधु संत सन्यासी हैं. सभी लोग रिलेटिव सत्य को और पक्का करवा रहे हैं. यस और नो? एक तो लेकर आए और दूसरा अभी सनातन सत्य कब समझ में आएगा? सब लोग यही कर रहे हैं, क्या करें? और जैसे जैसे आपको विज्ञान समझ में आता है, तुरंत मालूम हो जाता है कि जैसे विज्ञान का उपयोग ऑन द स्पॉट रिलैक्सेशन फील होता है, सेपरेशन फील होता है. यस के नो? प्रश्न शरीर है, इसीलिए अज्ञानता नहीं है. प्रश्न शरीर के साथ भ्रांति है, इसीलिए अज्ञानता है. इसीलिए राग द्वेष है. शरीर है इसीलिए नहीं, शरीर को तो है मगर आपको है क्योंकि आपको भ्रांति है. तो आप और शरीर दोनों क्या है? आप एक्टिव फॉर्म में प्रतिष्ठित आत्मा है और शाश्वत फॉर्म में शुद्ध आत्मा है और कर्मों की भुगतान के फॉर्म में प्रकृति है. तीनों क्या है? तीनों अलग है. और जो तीनों अलग है, इनको अलग ही देखना और समझना और अनुभव करना है. तो कोई पजल है नहीं. शरीर भी कुदरत का और सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी प्रकृति के साथ जुड़ा है. ये शरीर कुदरत का और सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी किसका है? प्रकृति का ही है ना. न शुद्धात्मा का है न प्रतिष्ठितात्मा का है. यस और नो? तो प्रकृति को असर होगी कि नहीं वो हमारा सब्जेक्ट, मगर प्रकृति की असर हमको क्यों होती है प्रतिष्ठित आत्मा को, ये प्रश्न है.
जब आइडेंटिटी अलग है तो वेयर इज द प्रॉब्लम? एक मैकेनिकल है जिसको प्रकृति कहते हैं, एक मिश्र है और एक शुद्ध है। ये मैकेनिकल चेतन है, ये मिश्र चेतन है, और आत्मा शुद्ध चेतन है। तीनों की क्वालिटी, कैटेगरीज, एग्जिस्टेंस क्या है? अलग। रोल भी क्या है? क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हो? जब आइडेंटिफिकेशन अलग है, लाइन ऑफ डिमार्केशन अलग है, फिर क्यों कंफ्यूजन करते हो? प्रकृति को क्या है क्या नहीं वो हम नहीं कहना चाहते हैं, मगर प्रकृति को जो हो रहा है वो मेरे को हो रहा है, ये क्यों मानते हो? ये प्रश्न है। अगर मैं प्रकृति से अलग हूं तो मेरे को हो रहा है वो ज्ञान की क्या जरूरत है? यस के नो? राम की सीता रावण ले गए, वो राम शरीर का नाम था, यस और नो? और सीता भी शरीर का नाम था और रावण भी शरीर का नाम था। तीनों में से एक भी प्रतिष्ठित आत्मा का नाम नहीं था। तो तीनों के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा क्या था? और शुद्धात्मा भी। तो पजल कहां है? मन वचन काया तो कर्मों की भुगतान का साधन है ही, तो उनको तो सफरिंग आएगा एज पर द प्रोग्राम। मगर उनका सफरिंग मेरा सफरिंग मानना, ये तो अज्ञानता है। अज्ञानता यहां है। समझ में आया? और इसीलिए हमने कहा करेक्ट योर विजन, नॉट माइंड, स्पीच एंड एक्शन। करेक्शन कहां करना है? विजन में, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं दृष्टि में। अगर इसको नीचे जाएंगे तो भी कहेंगे ज्ञान और दर्शन में। ये मन वचन काया को करेक्ट नहीं करना है, सुधारना या बदलना नहीं है। वो तो अपने आप एवरी मोमेंट एग्जॉस्ट हो ही रहे हैं विदाउट चॉइस। ये प्रकृति का स्वभाव ही वे टू स्मशान है। क्या है? तुम कुछ भी करो, वे टू, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो जो वे टू स्मशान है उनके लिए हम क्या सोचेंगे? वो तो हर मोमेंट स्मशान की ओर जा ही रहा है। हमको धकेलने की जरूरत। दे रिड्यूस द लाइफ एवरी मोमेंट, यस और नो? उनकी आयु खत्म हो ही रही है। इसीलिए मैंने कहा आत्मा की शक्ति को पहचानो। सोल नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है, यस और नो? सोल वर्ल्ड नहीं है, मगर सोल नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है। क्योंकि कौन जानेगा? आत्मा नहीं है तो दुनिया को कौन जानेगा? हु आइडेंटिफाई? जड़ कर सकता है? बाकी के पांच तत्व दुनिया को आइडेंटिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो चेतन है, इसीलिए दुनिया है। दुनिया को पहचान करने वाला है, दुनिया की अवस्थाओं को अनुभव करने वाला है। अगर चेतन ही नहीं थे तो चेतन खुद नहीं करता है, मगर चेतन की हाजिरी से ये होता है। इसको कहते हैं पावर चेतन। क्या बोलते हैं? वो पावर चेतन दो प्रकार के, एक चार्ज पावर चेतन और दूसरा डिस्चार्ज पावर चेतन। डिस्चार्ज भी पावर चेतन है, पिछले अवतार का चार्ज है। चार्ज है वो आज क्या है? डिस्चार्ज। तो वो बैटरी चार्ज हो गई है, अभी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। और दूसरी बैटरी चार्ज हो रही है, जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। मगर दोनों पावर चेतन है और आत्मा शुद्ध चेतन है। उनका पावर
कैटालिस्ट के फॉर्म में है। क्या है? कैटालिस्ट का मतलब होता है, लिसन केयरफुली, कैटालिस्ट का मतलब होता है द वाटर हैव नो आकार। आकार होता है, पानी का आकार होता है, जो पात्र में भर दो वो यस और नो। ऐसे आत्मा भी जिस बॉडी में चला जाता है ये उसकी अवगाहना है, रेडियस। उनका जो पावर है वो स्प्रेड आउट होता है। ये बाउंड्री के मुताबिक, चींटी में भी बाउंड्री होती है, एलिफेंट में भी बाउंड्री होती है, और ह्यूमन में भी बाउंड्री होती है। खुद का कोई आकार, खुद वो निराकार है, मगर उसको बॉडी दे दिया तो वो आकार हो गया। रियली आकार नहीं है। समझ में आया? और जब आकार के अंदर आत्मा होता है और वो आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। उस अवस्था को देखने और जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। उनके पास जो ज्ञान दर्शन है उसी मुताबिक प्रकाश में प्रकाशित हुई अवस्थाओं को वो देखेंगे और जानेंगे। प्रकाश न्यूट्रल है। क्या बताया? प्रकाश में राग द्वेष, मगर प्रकाश में दिखता है, उसमें प्रतिष्ठित आत्मा राग द्वेष करता है, मालिकी करता है, भोक्तापन करता है, कर्तापन करता है। समझ में आया? तो આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, એ એક આખું ટોટલ સેપરેટ પેકેજ છે. એનું જ્ઞાન દર્શન જુદું છે. Yes. હવે આ નવો ઉભો થયો છે, તો એ ક્યાંથી જ્ઞાન દર્શન લઈ આવ્યો? નવો એટલે કે એઝ અ એક્ટ ઇટ ઇઝ અ ન્યू, It's a belief. बट ज्ञान दर्शन in a terms of development is a carry on from the previous birth. और आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट कहा है डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है और माइनस भी नहीं होता है, तो वो डेवलपमेंट कैरी ऑन अप टू केवल दर्शन. તો જો નવો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે તે પેલું કારણ શરીર સાથે ડેવલપ થઈને આવેલો છે, કારણ કે નવો છે કે જ્યારે પણ ચાર્જ થાય છે ત્યારે પેલું પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ડેવલપ જ થતો જાય છે, ઇનબિલ્ટ જ હોય છે. दो भाग સાથે अंदर दो भाग है, एक घाती कर्म है, वो पुरुषार्थ करने में सहायक है. अघाती कर्म है, वो परिणाम के लिए सहायक है. नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, वो सफरिंग के लिए है. मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म पुरुषार्थ के लिए है. और अगर यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन निर्मोह हो गया तो भी पुरुषार्थ के लिए है. और आज का ज्ञान जो हम पाते हैं वो तो ज्ञान तो साथे लेके आया લઈને જ આવેલો છે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. તમે કીધું કે નામ કર્મ પુત્ર આયુષ્ય અને વેદનીય, Yes. એ ડિસ્ચાર્જમાં છે. Yeah, આખું ડિસ્ચાર્જ yes, yes. અંતસ્કરણ ઇન્ક્લુડેડ. yes, yes. એ ઘાતી કર્મ. અને અઘાતી એટલે જ્ઞાનાવરણ દર્શન મોહનીય, એ આખું અનંતરાય, એ Yeah. આખું કેરી ફોરવર્ડ નેક્સ્ટ લાઈફમાં થાય. यस यस ए इसमें प्लस माइनस होता है. क्या होता है? પ્લસ ज्ञान दर्शन. मिथ्या ज्ञान दर्शन होता है. मिथ्या ज्ञान दर्शन, वो मिथ्या ज्ञान दर्शन एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में डेवलप होता है. मिथ्या ज्ञान दर्शन मनुष्य में आने के बाद बुद्धि से वही मिथ्या ज्ञान दर्शन डेवलप होता है. और जब मार खाते हैं और कोई अनुभवी ज्ञानी मिलते हैं तब इसको कहते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो संसार बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए है, समाप्त करने के लिए नहीं है. सो यू चेंज योर ज्ञान दर्शन
એઝ અ મિથ્યા ટુ સમ્યક. એટલે પાછળનું જ્ઞાન દર્શન અને અત્યારે ડેવલપ થયેલું જ્ઞાન સન્નતતાનો સંજોગ એ બધું જ એ પ્રતિષ્ઠિત નવામાં છે આ ત્રણેય પેકેજ. यस यस यस. એટલે ज्ञान दर्शन को दृष्टि बदलना कहते हैं और मोहनीय कर्म को क्योंकि हमारे पास अज्ञान था. कौन सा अज्ञान? कि हम 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया में से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं. ये मोहनीय कर्म. अभी ये अध्यात्म से मालूम हुआ कि सुख तो केवल ओनली आत्मा का ही स्वभाव है, तो बाहर मोह करने की जरूरत नहीं है. तो ये मोहनीय कर्म धीरे धीरे क्या होगा? इरेज होगा. क्योंकि आप अभी ये विज्ञान जानने के बाद बाहर पुरुषार्थ के फॉर्म में मोह करते नहीं है. परिणाम में फॉर्म में तो रहेगा, वो मन वचन काय का शब्द है. ज्ञान दर्शन में मोह होना नहीं चाहिए. ये 3 अगर करेक्ट हो गया, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्मोह दशा प्राप्त हो गई. समझ में आया? तो फिर केवल ज्ञान तो रिजल्ट है, क्योंकि आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप बनाने का नहीं है. वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही. यस और नो? तुम्हारा ज्ञान दर्शन और मोह मिथ्या था. आत्मा में मूल ज्ञान दर्शन मिथ्या नहीं है. तो पहले आपको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म करेक्शन आपको करना है एज अ दृष्टि फॉर्म. अगर वो निकल गया तो फिर शरीर और आत्मा 2 ही रहेगा. और अगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म खत्म हो गया तो फिर नए कर्म, मगर जो कर्म लेकर आए पिछले अवतार के, ये तो भुगतान करना पड़ेगा. मगर जब कर्म खत्म हो जाएंगे, बॉडी को जला दिया जाएगा, तो आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में. नए कर्म तो बने नहीं, क्योंकि अज्ञान है नहीं. समझ में आया? તો મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન જે 4 પરમાણુ થયા એ કેવા હોય ને સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન થી જે સાયન્સ આખું સમજાય છે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ એના ચાર્જિંગ પરમાણુ કેવા હોય? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से संसार के लायक और सहायक कर्म बनते हैं. 4 गति में घूमने के कर्म बनते हैं. એટલે હેવી કોટેડ, हैवी कहो या माइल्ड कहो, मगर भुक्त संसार का ही होगा. नर गति होगी या देव गति होगी, मगर वो संसार कहेंगे. क्या कहेंगे? संसार. मगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करोगे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे, जिसका फल तो संसार में ही मिलेगा. मगर तुम्हारी दृष्टि में से मोह, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन खत्म हो जाएगा. मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक. तो भुगतान तो आएगी, मगर वो भुगतान आपको डिस्टर्ब, आपके ज्ञान दर्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगी. क्योंकि न मिथ्या ज्ञान है, न मिथ्या दर्शन है, न मोह है. सिर्फ अवस्था है, वो तो कुदरती रचना है. आपको कोई तकलीफ नहीं है और कंसर्न भी नहीं. इट इज एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली विदाउट आवर एफर्ट. लोग कहते जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोलते नहीं. जीवन जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोग मानते हैं. मगर ये मैं कहना चाहता हूँ, लाखों पार्ट से बनाया हुआ मशीन, सुनो केयरफुली, लाखों पार्ट से बनाया हुआ मशीन पावर से ऑटोमेटिक चलता है और प्रोडक्शन देता है. बोलते नहीं.
लाखों पार्ट से एक मशीन बना है। यहां रॉ मटेरियल डालो, वहां फिनिश, वो भी मैकेनिकल। मशीन कभी नहीं कहता मैं थक गया, बोलते नहीं। तो फिर लोग कहते कि ये तो मशीन है, तो ये क्या है? तो why you give the different opinion? That machine and this machine, machine have a same role, same system. We don't have a knowledge, that's why. Huh? We don't have a knowledge that. So wrong belief. दुनिया में मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा है, एक भी व्यक्ति को वो क्रिया करता है और थक गया है। ऐसी क्रिया है जो करता है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, फिर भी कहता है मैं थकता नहीं हूं। वो है श्वासोश्वास। बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है। कभी कोई नहीं बोलता है कि एक वीक के लिए आराम बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है। श्वासोश्वास क्रिया नहीं है। कोई नहीं कहता है कि मैं थक गया। क्यों? नहीं, बाकी सब ऑटोमेट नहीं है, सभी ऑटोमेट। तो फिर थक गया ऐसा क्यों बोलते हो? ये भी ऑटो मोड है, तो बाकी ऑटो मोड नहीं है। होल बॉडी इज ऑटो मोड और ओनली ब्रीदिंग इज ऑटो मोड। एवरीथिंग इज ऑटो मोड। बॉडी से क्या केड़ा दुखे છે ટીકું दुखे देखो देखो, हम जो पेन फील करते हैं, पेन ये क्या है बताऊं मैं आपको। पेन वो हिसाब जरूर है, क्या है, मगर ये भी ध्यान रखना, पेन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अटेंशन। क्या बताया? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, धीरे धीरे, चिंता मत करो मैं जो भी कहूंगा एग्जांपल दूंगा आपको, डोंट वरी। पेन इज देयर बट यू फील क्यों? आप क्यों फील करते हैं? बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंसी। शरीर को पेन होना एक अलग बात है और पेन मैं फील करता हूं वो अलग बात है। मैं करता हूं तो वो फीलिंग लाइव है, शरीर करता है तो मैकेनिकल है। पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ माय ज्ञान दर्शन, नॉट पार्ट ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। यस और नो? प्रतिष्ठित आत्मा जब प्रकृति सेपरेट है, वो क्यों फील करेगा कि शरीर को पेन हो रहा है? अगर वो करेगा तो क्या देखेगा और जानेगा, फील नहीं करेगा। मगर फील क्यों करता है? अटैच, आई एम अ बॉडी, मेरे को पेन हो रहा है, ये बिलीफ से वो फील करता है। रॉन्ग बिलीफ। बॉडी फील करता है इज ओके, क्योंकि उनका रोल है, मैं मना नहीं करता हूं। मगर आप क्यों फील करते हो? आप तो लाइव है, बॉडी लाइव नहीं है, बॉडी तो मैकेनिकल है। तो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है, तो पेन हो तभी तो वो पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ कर सकता है तो लाइव कैसे है? सो पेन होए तो फिर दवा अगर पेन की खाए और दर्द चला जाए तो बताओ मैं आपको धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे बताओ, कोई बात नहीं। दवा खाने से दर्द चला जाता है तो ऐसी दवा होनी चाहिए ना कि मुर्दा जिंदा हो जाए। आखिर बात तो शरीर की ही तो है। अभी नहीं है। नहीं, पहले जमाने में सतयुग में भी थी। बताओ मैं आपको, why we feel pain? We means I am talking about the प्रतिष्ठित आत्मा, not प्रकृति now, okay? हम जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा का ही शब्द प्रयोग करना समझने के लिए। हम जब परिणाम की बात करते हैं तो मन वचन काया समझना। हम स्वभाव की बात करते हैं तो शुद्ध आत्मा समझना। फिर गड़बड़ मत करना। तो मैं जब पुरुषार्थ की बात करता हूं कि प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति की फीलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लाइव इग्नोरेंस। क्या बताया? फील करना वो लाइव इग्नोरेंस ही है और प्रकृति को फील करना वो मैकेनिकल है। एग्जाम्पल,
कमर में बहुत दर्द हो रहा है और सीन में हम बहुत होता है। विथ इंटरेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं। चला जाएगा। उस समय फील नहीं होगा डॉक्टर साहब विदाउट मेडिसिन। होगा नहीं, पर इग्नोर करेंगे। देखो होगा तो सही, होता फील नहीं करता है मतलब नहीं है। देखो लाइन ऑफ डिमार्केशन, मैंने साफ बोल दिया कि प्रकृति को भुगतान करना है वो ऑप्शन नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा को फील करना वो ऑप्शन है। तो मैं प्रकृति की बात नहीं करता हूं, प्रतिष्ठित आत्मा की करता हूं। जब आप टीवी में अटैच हो जाते हैं तो फिर फ्यूल क्यों नहीं होता है? प्रकृति नहीं है, होता तो है। बोलते नहीं है। पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं स्वामी जी जो आपको उस टीवी से भी हटा देते हैं कि नहीं मैं सहन नहीं कर सकता इतना दर्द जो है। तो वो क्या प्रतिष्ठित आत्मा जानती है कि दर्द हो रहा है, उससे डिटेच कैसे हो? महाभारत के अंदर भीष्म पितामह बाण सैया पे लेटे हुए थे। हिस्टोरिकल प्रूफ, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, यस और नो? बाण सैया, नॉट ओनली वन, सो मेनी, उसके ऊपर लेटे हुए थे और कृष्ण भगवान को अपनी कहानी बता रहे थे कि मैंने क्या पाप किया था ताकि मेरे को ये भुगतान हुई। समझ में आया? तब कृष्ण भगवान ने कहा ये तो है तो परिणाम, मगर कौन से कर्मों का परिणाम है जो पिछले अवतार में किया था वो प्रोसेस के फॉर्म में आया। पहला परिणाम, आप पूरे परिवार के मुखिया होने के बावजूद आपके बच्चे जब जुगाड़ खेलते हैं आप नहीं बोलते नहीं हैं। ये भले इफेक्ट है, ये इफेक्ट की इफेक्ट है। लिसन केयरफुली, जुगाड़ खेलना, मौन रहना वो भी इफेक्ट। उसके बाद घर की बहू का चिरहरण हुआ और नहीं बोलना, ये भी इफेक्ट। कमिंग इवेंट कार देयर शेडोज, ये प्रोसेस है। वे टू बाण सैया, बोलते नहीं है। पर विष्णु पता ये नहीं कह सकते थे कि मैं तो मेरे जो है वो राग द्वेष से मैं तो अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अभी आपने पकड़ लिया। मैंने कहा था महावीर का मन वचन काया भी वितरागी नहीं हो सकता है, वो मैंने बोला था और आपने भीष्म पितामह को वितरागी बता दिया। यू हैव टू क्लैरिफाई, नो कंफ्यूजन। दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया वितराग हो ही नहीं सकता है। दृष्टि वितराग हो सकती है, ज्ञान वितराग हो सकता है, दशा वितराग हो सकती है, मन वचन काया नहीं। 24 में से एक भी तीर्थंकर का मन वचन काया वितराग नहीं था, तो वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी, तो जो भी अभी तक यही अज्ञान से हम चलते हैं, यही तकलीफ है और मैं यही भ्रांति को तोड़ने के लिए आया हूं। ये पकड़ के रखी है, क्या रखी है? पकड़ के कई लोग कहते थे मेरे को हमारी प्रकृति को वितराग बनाना है, मन वचन काया को वितराग बनाना है। मैंने बोला तुम कौन सी भ्रांति में जी रहे हो? मन वचन काया मिलता ही है मराग देश के कर्म के भुगतान के लिए, बोलते नहीं है। तो वो वितराग हो सकता है? वितराग वो दृष्टि की बात है, ज्ञान दर्शन की बात है कि फिजिकल मैकेनिकल प्रकृति की बात है? ये मैकेनिकल वितराग हो सकता है, ये तो सफरिंग के लिए है। सेपरेशन मुक्ति जाके प्रकृति को होता है और उस समय मुक्त ऐसा होता है। तो ये प्रकृति का रोल है। जैसे अगर आप टीवी में देखते हैं और आपको बैक पेन हो रहा है और टीवी में अच्छी सेल आती है, आप सेपरेट रहते हैं, तब आप फील नहीं करते हैं। तो ये फिजिकल टीवी से भी अगर आपका पेन फील नहीं करते हैं तो आप शुद्धात्मा में रहो, कुदरती रत्न देखो, तो क्या होगा? फील होगा? नहीं होगा।
फील होगा तो वो मैं नहीं हूँ। नहीं, प्रकृति को होगा, वो तो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा प्रकृति जब कर्मों की भुगतान का साधन है तो उसको फील नहीं होगा, प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। इधर फील इसको होगा लेकिन मैं उससे मुक्त अभी नहीं आप हो सकता। प्रतिष्ठित आत्मा को फील होना वो अज्ञानता है, मन वचन काया को फील होना वो कंपलसरी है। और उसमें ऑप्शन महावीर ने भी फील, महावीर की प्रकृति ने फील किया, राम की प्रकृति ने फील किया, कृष्ण की प्रकृति ने फील किया, मगर रामकृष्ण महावीर के ज्ञान दर्शन ने फील नहीं किया। प्रश्न ज्ञान दर्शन का है, मन वचन काया का नहीं है। हम सेपरेट ज्ञान दर्शन से हो सकते हैं, मन वचन काया तो साथ में रहेगा जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक। આ જગ્યાએ લાગુ પડે ને સાતા સાતા વેદની તે તદ્દન જુદો એવો છે. हाँ, वो प्रकृति का स्वभाव है ना, साता असाता इनको होती है, ये न प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है और न परमात्मा का स्वभाव है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा में क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से वो जुड़ जाते हैं, तो प्रतिष्ठित प्रकृति को होता है वो भी अनुभव करता है, फिर नया राग द्वेष करता है कि ऐसी अवस्था नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए। यही होती है ना। एक महाशय ने कहा मेरे को प्रश्न किया कि अगर हमारी प्रकृति खराब है, जैसे चोरी करती है, झूठ बोलती है, मारामारी करती है, अब्रह्मचर्य करती है, परिग्रह बढ़ाती है, ऐसी प्रकृति है, और हम कहते हैं कि हमको चोरी न करने वाली प्रकृति चाहिए, झूठ न बोलने वाली प्रकृति चाहिए, हिंसा न करने वाली चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली चाहिए, परिग्रह को कम करने वाली प्रकृति चाहिए, तो क्या ये मुक्ति का मार्ग नहीं है? ना, मुक्ति नहीं, प्रकृति ना। बोलिए बोलिए। मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्योंकि आपको प्रकृति ही चाहिए, પ્રકૃતિ સુધારવાની વાત કરી. बोलते नहीं है। पर सुधार तो कर रहे हैं। That's the point. प्रकृति को सुधारना इज इक्वल टू परमात्मा को सुधारना है। Yes. हमको परमात्मा की अनुभूति करनी है या प्रकृति की? परमात्मा और सुधारना प्रकृति को है। क्या करें? नहीं, बताइए ना मेरे को। नहीं, प्रकृति को नहीं सुधार। प्रकृति सुधारते सुधारते तो इतने अवतार निकाल दिए, फिर भी उसको નહીં સુધાર. जला दिया जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट? अगर ये प्रकृति चोरी करती है या नहीं करती है, झूठ बोलती है या नहीं बोलती है, हिंसा करती है या नहीं करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है या नहीं करती है, परिग्रह बढ़ाती है या कम करती है, उससे आत्मा से क्या मतलब है? તો પછી તમારા લોકો માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્રહ્મચર્યનું કેમ પ્રાધાન્ય? તમારા માટે એટલે આપતપુત્રો માટે, શુદ્ધાત્મા માટે નહીં। આપતપુત્રો માટે નહીં. તો આપતપુત્ર તો ફિઝિકલ સ્ટેટસ સર, ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટસ ઓફ સોલ। બરાબર. તમે એમ કહો કે અમારે સાધુ સૌ છે અબ્રહ્મચર્ય, એવું ચાલે? એ સાધુના સ્ટેટસ માટે કીધું છે, કેમ આમ કરો પ્રભુજી? આત્માના સ્ટેટસ માટે? बिकॉज एज अ आपतपुत्र यू आर द पब्लिक फिगर, सो તમારે લક્ષ્મી ને વિષય હોવા જોઈએ નહીં। નેસેસિટી ઇઝ ઓકે ફોર મની એન્ડ મટીરિયલ, સમજાય છે, પણ રિક્વાયરમેન્ટ નહીં। જેમ તમે એમ કહો કે હું 1 મિલિયન 2 મિલિયન 5 મિલિયન કહું, એવું અમારે ના હોય। અમે એમ કે ભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના પૈસા આપો, કપડાના પૈસા આપો, અથવા કપડા આપો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, દેટ ઇઝ ઓકે। નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? પણ અમે એમ કે ના અમારે 2 મિલિયન જોઈએ તો બેઝિક હવે નેસેસિટી તો સાધુ સંત સંન્યાસીને નેસેસિટી પૂરી પાડવાની જવાબદારી સમાજે વર્ષોથી લીધી છે। એ કઈ નવી વસ્તુ, કારણ કે એ સમાજ માટે જીવે છે, so there is no question। બટ એ જો સમાજ પાસેથી નેસેસિટીથી વધારે અપેક્ષા રાખે છે ફોર હિઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ, તો એ સંસારી જ છે, ભલે ત્યાગી હોય તો। મેં જૈન આચાર્યોને કીધું છે, વેદાંતના આચાર્યને કીધું છે કે મંદિર બનાવી, સંસ્થા બનાવવા, વરઘોડા કાઢવા, આ તમારો સબ્જેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્યાગીનો સબ્જેક્ટ નથી।
એ સંસારીનો સબ્જેક્ટ છે. સંસારી લોકો મંદિર બાંધે, પૈસા ઉઘરાવે, મંદિર ચલાવે, તમારે તો ખાલી પ્રતિષ્ઠા જ કરવાની. પણ આ તો મંદિર ઉપર નામ લખે કે ફલાણા સાધુની, આચાર્યની, અને એમનું નામ છે એટલે હવે એની હકુમત ચાલે. वो कहेगा वही यहाँ आ सकते हैं, दूसरा तो मालिकी नहीं हुई. फिर तुम कहते हैं वितराग का मार्ग है. मंदिर का विरोध करने की जरूरत नहीं है, संस्था का विरोध करने की जरूरत नहीं है, और प्रोसेसन का भी विरोध करने की जरूरत नहीं है. इट इज ओनली फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द संत और साधु और सन्यासी. They only give you the blessing. That's it. तो ये आप पुत्र जो कैटेगरी है उसको थोड़ा सा समझाएंगे, मतलब जैसे साधु है मगर वेश उस प्रकार का है. बस ये तो एवरीथिंग इज सिंबॉलिक. मैं सफेद पहनूं, भगवा पहनूं, लाल पहनूं, लीला पहनूं, ये सब सिंबॉलिक. ओके, टू पहचान के लिए. दैट इज सिंबॉलिक. ओके, देयर इज नो एनी मोर थिंग्स. ओके, बट हाँ, एक बात कॉमन है कि व्हेन यू आर पब्लिक फिगर एंड यू ट्राई टू हेल्प द पीपल वॉट एवर यू हैव इट, तो फिर आपका जीवन लक्ष्मी और विषय की कमजोरी वाला नहीं होना चाहिए. दैट इज अ बेसिक थिंग. आइदर यू आर जैन साधु और सन्यासी और आप्तपुत्र और वॉट एवर इट इज, डजंट मैटर, मगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए. आपका काम ज्ञान देना है और समाज का काम आपकी सुविधाओं को, नेसेसिटी को पूरा करना है. दैट्स इट. आपकी इच्छाओं को नहीं, नेसेसिटी को. दैट्स इट. અને ના હોય તો ઘણા બીજું લે છે ને, તો અમુક વેરી લિમિટેડ ફ્યુ પીપલ લાઈક ધેટ. પણ બીજા બધા તો રહે છે ને દુનિયામાં, લક્ષ્મી ને જે હોય એના માટે બીજા બધા એટલે કોણ હોય? વ્યસ્તા હોય છે. વોટ ઇઝ ધ કેટેગરી? શું ખબર પડે બધા વિષયોને એની લક્ષ્મી નથી વિચારતી. હું એમ કહું છું કે બીજા બધાએ કઈ કેટેગરી? તમે ત્યાગીની વાત કરો છો, સન્યાસીની વાત કરો છો. ત્યાગી સન્યાસી તો હિન્દુસ્તાનમાં સબ ऐसे મોસ્ટલી. એટલે वही तो मैंने कहा ने But they are really कि not त्यागी, really. उनको नहीं, उनको उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए. यही तो मैंने कहा. दुनिया की दृष्टि से तो त्यागी है ना. हाँ, वो है व्यवहार से तो. नहीं, भले ही वो दुनिया की दृष्टि से त्यागी है, मगर मैंने यही कहा कि अगर वो त्यागी के टाइटल के है, यूनिफॉर्म भी उसका त्यागी है, फिर भी अगर वो मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करके वहीवट करता है, संस्था के लिए करता है, शिष्य बनाता है, वरगुआ निकालता है, तो जिम्मेदारी उसकी ही रहेगी. कुदरत का कानून आपके कपड़े से या स्टेटस से काम नहीं लेगा. आपकी भावना के आधार, इंटेंशन के आधार जो कर्म बनेगा इसका कुदरत फल देगा. आपके कपड़ों के आधार से फल नहीं देगा. કારણ કે या सुन लो, સ્ત્રી પણ હોય, છોકરાઓ હોય, એ લોકોનું ફેમિલીનું પછી બધું ચલાવતા હોય, સેમ નહીં કમી. અને એવી રીતે ચાલતા જ હોય છે વ્યવહારો. બધા તો ના બોલું છે, પણ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. અમારા જેવા બહુ લિમિટેડ હોય કે જે લે નહીં, આપતા પુત્ર જેવા બહુ જ ઓછા હોય છે. બાકી લેતા હોય છે. બધો તો સાડો તો પાસે જ ગયો છે. वही तो डिस्चार्ज तरीके આપણે वही तो मैं कहता हूँ. पेमेंट तो આવે. फिर उसको त्यागी नहीं बोलेंगे, सन्यासी नहीं बोलेंगे, साधु नहीं बोलेंगे, मगर उसको टाइटल देना है. अगर समाज में अच्छा काम करते हैं, ऐसे फैमिली वाले लोग अच्छा काम करते, पैसे का भी व्यवहार करते, उसको कहते हैं सोशल रिफॉर्मर. क्या बोलते हैं? दे आर नॉट साधु और सन्यासी. या श्रावक. श्रावक बोल सकते, श्रावक स्वामी का भी बोल सकते. तो एक एग्जाम्पल दिया. कोई टाइटल का इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब वो साधु या सन्यासी नहीं है. दैट्स इट. बाकी और कोई भी टाइटल बोल सकते हैं आप. दे आर गुड फॉर सोसाइटी बट एज अ सोशल रिफॉर्मर. दैट्स इट. आप नॉट इक्वल टू साधु और सन्यासी. Yeah, the social reform, yeah, you can say that. Yeah. अब एक प्रश्न मेरा ये है कि थियोरेटिकली तो अब हम समझ रहे हैं कि ये प्रकृति का जो है, मन वचन काया प्रकृति का है. प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो व्यवहार आत्मा, हाँ, और फिर शुद्ध आत्मा. तो जो आप कह रहे हो कि जो शरीर को होता है, तीन चीज. यू एक्सप्लेन द थ्री थिंग. आपने दो ही किया. यही गड़बड़ है. ओके. पूरे वर्ल्ड में विज्ञान खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दे आर नॉट बिलीव इन इन बिटवीन द बॉडीज एंड सोल.
नहीं तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा आ गई ना। हाँ, तो 3 बोलो, बॉडी, आत्मा एंड प्रतिष्ठित आत्मा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि थियोरेटिकली तुमको समझ में आई बात, अब प्रैक्टिकल में कि जब दर्द होता है और सीवियर दर्द होता है तो प्रतिष्ठित आत्मा बॉडी और मन वचन काया से अलग रहना, अलग कैसे रखें, उसमें आप कोई प्रैक्टिकल उसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। यस यस यस, ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू वेरी सिंपल थिंग्स हैं। पहले मैं स्थूल एग्जांपल दूं, फिर शरीर का देता हूं, ओके ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। रास्ते के अंदर $100 की नोट रास्ते में पड़ी है, वो आपकी नहीं है मगर आपने देखी कि रास्ते में पड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं, बिकॉज ऑन द रोड पड़ी है, आपके 15 फीट दूर है वो, और आपने देखी, आप इस तरफ जा रहे हो लेने के लिए, वही नोट और 3-4 लोगों ने भी देखी, इसमें से एक व्यक्ति ने झापड़ लगा के नोट ले लिया, अमॉन्ग द 5 पीपल एक व्यक्ति को मिला, और बाकी जो 4 व्यक्ति है कोई ब्लेम कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि और किसी की थी ही, 5 में से किसी की नहीं थी। ठीक है, अभी आप लेने के लिए गए और आपको नहीं मिला, क्या आपको लॉस का एहसास होगा? क्यों भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर नॉर्मली, चलो नॉर्मली बात करो, नॉर्मल बात करो, नहीं होगा। नहीं होगा। कोई विशिष्ट की बात जा दो, जैसे कोई व्यक्ति क्या कहते हैं वो लोभिया है तो अलग, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, नहीं होगा, बिकॉज ऑफ उनको मालूम है कि मेरी नहीं थी, बड़े मेरे को मिली नहीं मगर एक्चुअली मेरी नहीं थी, तो लॉस का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, यही एग्जाम्पल हम दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर आपकी नोट पॉकेट निकालते समय गिर गई $100 की नोट, और आप 10-15 फुट आगे गए, फिर आपने पॉकेट रखा, फिर देखा नोट तो है नहीं, फिर पीछे देखा तो 15 फीट दूर नोट पड़ी है, आपने मुड़ के लेने की कोशिश किया, उस समय और भी 2-3 लोगों ने देख लिया, उसमें से एक व्यक्ति ने, ठीक है, आप प्रूव नहीं कर सकते कि मेरी है, आप बोल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर सकते थे प्रूव, आज भी नहीं कर सकते, पहले नहीं थी तो भी नहीं कर सकते, आज है तो भी नहीं कर सकते, मगर पहले फील नहीं हुआ, अभी क्या होगा? बोलिए, क्यों? दैट्स इट, मेरी है, नोट से नहीं, नोट तो पहले भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, मगर पहले फील नहीं हुआ, अभी हुआ, बिकॉज ऑफ मेरी है। बिलीव दे क्रिएट द सफरिंग, एग्जिस्टेंस नेवर क्रिएट द सफरिंग। अभी ये नोट की बात है, अभी ये फिजिकल बॉडी पे आ जाओ, फिजिकल बॉडी पे आ जाओ। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख दर्द होते हैं, मानसिक कहो, शारीरिक कहो, जो भी कहो, आर्थिक भी फीलिंग होती है, और बहुत सारे प्रकार की सफरिंग होती है मानसिक लेवल से भी, और हम फील भी करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ। तो प्रश्न ये है कि शरीर जो दर्द महसूस करता है, अभी ध्यान से सुनना, मैं साइंस बता रहा हूं, ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपको शरीर में बहुत पेन फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है, अभी मैं एक्चुअल एग्जाम दे रहा हूं, लिसन साइंस केयरफुली थ्रू द एग्जाम्पल। शरीर को पेन हो रहा है, फिजिकली मेंटली दोनों पेन हो रहा है, हम फील कर रहे हैं, पूरे जब से वेकअप हुए तब से फील कर रहा है। ठीक है, अभी रात को हम सो गए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, और साइलेंट हो गए,
उस समय क्यों फील नहीं होता है? Conscious. બહુ થાકી જાય તો Yeah. બેભાન થઈ જાય. नींद आएगी तो नहीं, नींद आ गई, तेज है। नहीं नींद आ गई तो तड़प तड़प के शारीरिक मानसिक पेन क्यों नहीं होता है? आप मेरे को लॉजिक बताओ। आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक। पूरा दिन आपने फील किया, रात को सोने के बाद क्यों नहीं? वही बॉडी है। इसके पीछे साइंस है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप सब सोच के बताइए। मैं साइंस बताना चाहता हूँ। રાતે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ભળે નહીં. ઘરની દવા આપે એકલા ઊંઘ આવે, બાકી થોડી આવે. बोलिए। ઘણા ઊંઘી જાય. કરી હોય, બરાબર है? कायम कायम सर्जरी किया होएगा, गेंद का दवा देगा तो स्लीप કે आएगा. દવા લઈને સુઈ જાય ને તો હુઈ જાય કે. પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ભળે નહીં, એ તો આપ જાગૃત જ प्रश्न वो है ही नहीं। થઈ નહીં. आई एम टॉकिंग, मैंने ये नहीं कहा कि किसी का ऑपरेशन किया, मैंने बोला नहीं। ये शब्द प्रयोग किया। मैंने कहा फिजिकली मेंटली वो पेन फील कर रहा है। सर्जरी होता है तभी पेन होता है, बाकी पेन नहीं होता है। હોતા है. तो ये कोई नई बात है। वाई यू आर एडिंग समथिंग इन एग्जाम्पल? मैं सिंपल बोलता हूँ तो आप एडिंग क्यों करते हैं? मैंने सिंपल कहा कि फिजिकली और मेंटली आप पेन फील कर रहे हो फ्रॉम मॉर्निंग, यही कहा ना मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऑपरेशन किया इसीलिए फील कर रहे हो। एनीवे, तो ये फीलिंग रात को सो जाने के बाद क्यों नहीं होती है? शरीर तो है। પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો ઇન્વોલ્વ ના હોય છે. મારું નથી ત્યારે એવું ના થાય કે આ મારું છે. સુઈ ગયા હોય ત્યારે, જાગતા હોય ત્યારે ખબર છે કે આ મારું છે. તો એ હુઈ ગયો હોય. बोलो। પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એમની સાથે અટેચ નથી, પેઇન સાથે ડિટેચ છે. પેઇન તો ત્યાં જ છે. પેઇન ત્યાં જ છે પણ એ ડિટેચ છે. એને પેલું નથી કે અને દિવસે એક અને દિવસે ફીલ કરે છે દિવસે કામ કરીને અટેચ છે. કયો? હાબળો જો હાબળો કયો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા? જે પોતે માનેલો છે કે મને થાય છે આ ચાર્જ કે ડિસ્ચાર્જ? ડિસ્ચાર્જ. आई गयो जवाब? जवाब आई गयो? ડિસ્ચાર્જ ને ચાર્જ સાથે શું લેવા દેવા? પુરુષાર્થ કોણ કરે છે? પ્રતિષ્ઠિત ચાર્જ. કયો? ચાર્જ અને ડિસ્ચાર્જ તો કર્મ ભોગવવા માટે નથી, છે. તો એ કરે કે ના કરે ઓપ્શન છે? ના. એ પાસે ઓપ્શન નથી. એ જાગે છે તો કરે, ઊંઘે તો નથી કરતો, પણ એને લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સાથે શું લેવા દેવા? બસ હોય. એટલે લાઈવમાં ફિલિંગ નથી, એ પ્રૂવ થઈ શકે છે ને? ડિસ્ચાર્જમાં છે. आपको समझ में आया? नहीं, पर वो तो ये है कि दर्द इतना है कि आप गोली ले लो। नहीं, फिर वो ये कह रहे हैं कि आप तड़प तड़प के भी सो गए। सो गए पर फिर नींद खुल जाएगी। दर्द जो है अगर ज्यादा है तो नींद खुलेगी। खुलेगी. प्रिंसिपल सर ये है, ऐसा सिद्धांत क्या है? एनी काइंड ऑफ पेन इफ यू आर सफरिंग, नॉर्मल, मीडियम और एक्सट्रीम, 3 काइंड ऑफ। अगर नॉर्मल है हम इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर मीडियम है तो पूरे दिन रहेगा, रात को अगर शायद नहीं होगा, मगर एक्सट्रीम होगा तो रात को होगा। दिस इज अ स्टेज, 3 स्टेज, ओके? एक्सट्रीम है, गोली ले लिया तो दर्द गया क्यों? वो गोली के असर से। तो वो गोली का पावर कुदरती कानून से ऊपर है। ये हमको नहीं मालूम। बोलते नहीं है। હોય નહીં શકતા. बोलिए। नहीं, पर वो गोली ना वो पेन गोली क्या सेंसेशन करती ब्लॉक कर देती है। वही मैं आपको ये साइंस धीरे धीरे आपके मुखार से इनसे बताना चाहता हूँ। मैं उत्तर दूंगा ने तो इसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको उत्तर देने में तकलीफ होती है ना, वहां साइंस खुलेगा। मैं कहूंगा तो आपको रेडीमेड लगेगा। अभी आपको उत्तर देने में की तकलीफ होती है? वी ऑल आर गोइंग सब्जेक्ट टू द साइंस। साइंस की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक हमने इस प्रकार से सोचा ही नहीं है ना। अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं एक एक प्रश्न करके।
आपको धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि हम इस प्रकार की प्रोसेस अंदर करते ही नहीं है ना। Yes. प्रश्न ये है, ये कोई बात नहीं है। फिजिकल पेन को सेपरेट करते। यस, आप वेरिएबल को चेंज करो, अनवेरिएबल है, मीडियम है तो भी रात को सोते समय चेंज करो, और ज्यादा है, एक्सट्रीम है तो दवा लेके आप चेंज करो। और तीनों में कॉन्सेप्ट एक ही है। कौन सा? सेपरेशन। Yes. समझ में आया? Yes. और वो डिटेच ज्ञान से रह सकते हैं। कोशिश करनी पड़ती है। समझ में आया? That's it. But pain is there, but how will be detached? Because you have so much pain, you cannot tolerate sometimes. How will be detached for that? हम सब यहाँ बैठे हुए सब इतने मेंटल स्ट्रेस से पास हो चुके हैं सो मेनी टाइम्स कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इतना स्ट्रेस हम झेल चुके हैं, फिर भी जिंदा है। ये कोई नई बात नहीं है, मैं सबकी बात करता हूँ। एवरीवन दे पास सो मेनी टाइम इन हिज लाइफ कि आज तो मर ही जाना है, बस इससे तो मरना है। ऐसा बहुत बार सोचा, मतलब मेंटली, फिजिकली कम ज्यादा हो सकता है, मगर मेंटली इतना ज्यादा होता है कि जीना, वो लगता है कि जीना जैसा नहीं होता है कि नहीं, फिर भी मरते हैं। तो ये सब रिलेटिव सत्य की अटैचमेंट से जो आपके वैल्यू करते हैं, इसके आधार से सफरिंग है। प्रकृति को सफरिंग है कि नहीं वो प्रश्न नहीं है, मगर प्रकृति मैकेनिकल है और इसीलिए उनको सफरिंग होना है तो होगा ही, क्योंकि डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बिलीफ लेकर आए हैं। मगर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कोई भी संजोग में सेपरेट रह सकता है, एज पर द पावर ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन। आपको वो डेवलप करना पड़ेगा थ्रू द प्रैक्टिस। ये कोई चमत्कार की बात, ये सिद्धांत की बात है। सही। महाभारत के अंदर और रामायण के अंदर राम ने युद्ध के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों की हिंसा किया, अर्जुन ने भी किया। वो अटैच करके किया होगा या डिटेच होके? लाखों व्यक्तियों की हिंसा करके हम डिटेच रह सकते हैं, और फिजिकल पेन में डिटेच नहीं रह सकते। बोलते नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। मैं मानता हूं, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। इम्पॉसिबल नहीं। मेरा कहने का मतलब है you have to realize through the practice. I agree with you, मगर इम्पॉसिबल मत कहो। If we have a path, we can walk. Yes or no? Slow या फास्ट? जब रास्ता है तो क्यों नहीं चल सकते हैं? रास्ता नहीं है तो बराबर है तो क्यों नहीं चल सकते हैं? That is important. तो साइंस यूज करके रियलाइज करने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इट इज अ कंसर्न विथ योर प्रैक्टिस इन अ प्रैक्टिकल थिंग्स। जब होता है तब आपको ये प्रैक्टिकली रियलाइज करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि सेपरेशन क्या चीज है। सब कुछ हो सकता है, जन्म से मौत तक की सभी अवस्था जो मन वचन काया से पास हो रही है, उसमें हम 100% सेपरेट रह सकते हैं। वो मैक्सिमम स्टेज है, मगर हम स्टार्ट फ्रॉम द 1%। वेयर इज द प्रॉब्लम? दुनिया की कोई भी व्यक्ति, चाहे लॉर्ड महावीर, कृष्णा और राम, उन्होंने भी 1% से ही स्टार्ट किया था पहले अवतारों में। यस और नो? एकदम से 100% हो गए। तो इसमें कोई नई बात क्या है? आपको प्रैक्टिस करना है, रियलाइज करना है, आगे बढ़ना है। हम काम मना करते हैं, मगर इम्पॉसिबल मत मानो। आप खुद इम्पॉसिबल कहोगे तो फिर प्रयास का सवाल है ही नहीं।
यू आर सरेंडर टू प्रकृति। समझ में आया? और इसीलिए मैंने कहा प्रतिष्ठित आत्मा का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को बारंबार करोड़ों बार भी कुदरती रचना देखना ही पड़ेगा। दैट इज अ वे टू सेपरेशन। ये कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको करोड़ों बार देखना पड़ेगा क्योंकि कुदरती रचना ही है। नहीं देखते हैं तो भी, यस और नो? और मैं सिर्फ देखने की बात करता हूं, कोई क्रियाकांड की त्याग करने की बात तो करता ही नहीं हूं। यस और नो? देखो साइंस सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, और प्रैक्टिस से अनुभव पॉसिबल है। ईच एंड एवरी पर्सन, इफ दे हैव अ वैल्यू ऑफ द साइंस, interest of the science, application of the science, then they can realize. Otherwise, not. स्वामी जी, इसमें मेडिटेशन मदद कर सकता है रियलाइजेशन में? मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन इज हेल्पफुल। ज्ञान दर्शन मेडिटेशन का सब्जेक्ट नहीं है। मेंटल फिजिकल पीस के लिए मेडिटेशन इज गुड। आप कितना भी मेडिटेशन करोगे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब लोग बहुत हंसेंगे मेरे एग्जाम्पल से। विश्वामित्र का नाम सुना है? उन्होंने कितने साल साधना किया था? अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट टॉकिंग हजारों साल की। अभी सुनो, सबको हंसी आएगी। अभी हजारों साल की साधना और मेनका का 1 घंटे का नृत्य। Who is powerful? Who is powerful? आप समझे? That is the power of meditation. ज्ञान दर्शन अलग चीज होती है, मेडिटेशन अलग चीज होती है। इससे शांति मिलती है। जहां तक नॉर्मल समझोगे, इट इज हेल्पफुल फॉर यू एंड मानसिक रीति आप स्वस्थ भी बनते हैं। मगर ज्ञान दर्शन नहीं है, कभी भी स्लिप कर सकते हो, कभी भी। ज्ञान दर्शन इज अ रियल पावर एंड मेडिटेशन ए रिलेटिव एंड टेम्पररी पावर। समझ में आया? एक महाशय था जो 40 साल से अहमदाबाद में है, 40 साल से लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। एक महात्मा मेरे पास उनको लेकर आए सत्संग के लिए, पर्सनली, नॉट सत्संग में नहीं, 1-to-1 मेरे घर पे लेकर आए। तो वो भाई का परिचय दिया मेरे को कि ये भाई मेडिटेशन लोगों को सिखा रहे हैं। फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, 4th लेवल का, ऐसा लेवल है सबको। जो सबका अपना फील्ड होता है तो एक डिस्क्रिप्शन भी होता है ना, एक लेवल भी होता है, और वो एक्सप्रेस कर भी सकते हैं अपनी बात। इज अ टीचर। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत हाई लेवल के मेडिटेशन के टीचर हैं और वो घंटों तक वो बैठ सकते हैं आंखें बंद करके थ्रू द प्रैक्टिस, और दूसरे को सिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की तो बात है ही नहीं, कि गलती की तो बात ही नहीं है उसमें, तो क्रिटिसाइज का तो सवाल है ही नहीं। फिर मैंने कहा जो भाई मेडिटेशन करवाते हैं उनको मैंने सिंपल क्वेश्चन किया, मेडिटेशन करने से क्या क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन कनेक्टेड विथ योर फिजिकल बॉडी। पहला प्रश्न करूंगा फिजिकल बॉडी का, फिर अंदर जाऊंगा। ओके? जब मैं फिजिकल बोलूंगा तब मन वचन काया सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके? तो पहले मैं मेडिटेशन करूंगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा मेरा शरीर स्थिर हो जाएगा। यस और नो? मेरी जबान, मेरी सेंसेस साइलेंट हो जाएगी ना, ये होगा ना। और अगर ज्यादा मेडिटेशन किया तो मन भी, यस और नो? ये प्रोसेस है एंड आई एक्सेप्ट इट।
आई वॉन्ट नो एनी क्वेरी और क्वेश्चन। ओके, तो ये मेडिटेशन का बेनिफिट है और उनकी प्रक्रिया क्या है। जब कोई नया व्यक्ति मेडिटेशन में आता है तो पहले कहता है आप कोई मंत्र जाप करो, कॉन्सेंट्रेट करके, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय। समझ में आया? मंत्र बोलो और इसको देखो ताकि कंसंट्रेशन बना रहे इन अ प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मंत्र मत बोलो, भगवान का पिक्चर देखो, गुरु का पिक्चर देखो, टू सी द पिक्चर्स विदाउट वर्ड्स एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर ज्योत को देखो, वहां पिक्चर भी नहीं है और वर्ड्स भी, ओनली द लाइट, इमेजिनरी नॉट एक्चुअली। और फोर्थ स्टेज के अंदर यू सी द नेचर, सन, मून, स्काई, ओशन, रिवर, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, ये सब देखो तो आपकी मनोवचन काय की दुनिया भूल जाओगे। और अगर ज्यादा किया तो कुदरत में इतने खो जाएंगे, आप मन तो शांत होगा, धीरे धीरे आप शरीर का भान भी भूल जाओगे। मैं सब कुछ जगह पे एक्चुअली प्रैक्टिस करके आया हूँ। आई एम अ टीचर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन सर्टिफाइड। समझ में आया? मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। स्वामी जी, तो आप मेडिटेशन तो પછી લાઈવ ઈગો જ કરે ને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા? अभी कहानी बाकी है। तो ये मैंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने एक्सेप्ट किया कि जो द वे यू एक्सप्लेन, आई एग्री विथ यू, आई हैव नो एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने प्रोसेस बताया, आई एग्री विथ यू। फिजिकली कहो, मेंटली कहो, और लास्ट में देह भान भी भूल जाता है, ये पूरी प्रोसेस को मैं एक्सेप्ट करता हूं एज अ लेवल ऑफ योर मेडिटेशन। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। हम रात को सो जाते हैं, क्या होता है? पहले फिजिकल बताओ, फिर मेंटली बताओ। बोलिए, सब शांत हो जाए, स्थिर થઈ एक एक बोलो, जैसे मैंने स्टेप बताया, गोल गोल नहीं। शरीर और पहले शरीर शांत हुआ, धीरे 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 शरीर शांत हुआ, फिर सेंसेस, शांत शांत मुंह, बंद मन शांत और शरीर को भी शांत। तो रोज करते हैं, वो करने की जरूरत है। ये रोज नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। डॉक्टर साहब बोलते नहीं है, जो बर्थ नेचर होता है उसके लिए प्रैक्टिस करने का। तो उनका तो ये ऐसा है ना कि जब आप जगे हुए हो तब जरा शांत रहो। तभी तो लोग जंगल में जाते हैं, वो कंट्री साइड पे जाते हैं, मेडिसिन करवाने वाले पब्लिक में नहीं होते। क्यों आप ऐसा बोलते हो सर? રાત્રે સપના તો હોય છે, સપના આવે ને રાત્રે, એ તો હોય, મેડિટેશનમાં ના હોય સપના। Not all the time. મને નહીં ખબર, મેડિટેશન મેડિટેશનમાં સપનું ખરું? વિચાર આવે મેડિટેશનમાં સપના નથી આવતા એવું નથી, હા, સપનાના પ્રકાર જુદા હોય। અચ્છા, they go beyond the physical world and they go in a natural world જ્યાં આ રિલેટિવ સત્ય નથી। અચ્છા, એ તમે કીધું ગો બિયોન્ડ, એ એનું ઇમેજિનરી છે કે પાછળનું રિઝલ્ટ રૂપે આવ્યું છે? ઇમેજિનરી જોઈએ ને, ઇમેજિનરી, તો ઇટ મસ્ટ બી ધ કનેક્શન વિથ ધ પાસ્ટ સમવેર, કે એનું રોલ આ રીતનું છે। એની પ્રોસેસ ઇઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ। રાઈટ, પણ મારો પ્રશ્ન ખાલી એ છે કે કોઝની ઇફેક્ટ છે, ધેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ। એની પાછળ સાયન્સ શું છે, ધેટ ઇઝ માય સબ્જેક્ટ। મેડિટેશન એ પણ કોઝની ઇફેક્ટ છે અને સુઈ જાઓ છો એ પણ કોઝની ઇફેક્ટ છે। મારો પ્રશ્ન એની પાછળનું સાયન્સ શું છે તે છે।
તો સાયન્સ તમે શું કહેવા માંગો છો? તમે ધ્યાનમાં એટલે ધ્યાનમાં પણ એ થાય છે અને ઊંઘો ત્યારે પણ એ થાય છે. સેમ થિંગ ધેટ્સ વોટ યુ સે. કારણ કે પેલામાં વધારે પીસ લોકોને લાગે છે, ધ્યાન કરવા બેસી જાય છે. નથી યોગામાં અને રાતે સુઈ જતા પીસ લાગતી નથી. ખબર નહીં હું થતું હશે બધાને તો. બધા તમને શું થાય છે પણ બીજાની વાત જવા દો ને. તમે પીસ નથી અનુભવતા? મગજમાં સપના દેખાય ને. અરે એક્ટિવિટી તો હોય છે ને, એક્ટિવિટી ઇઝ ધેર, રાઈટ? હું શું કહું છું, બોડી સાથે રાત્રે કોઈ પણ માણસ સુઈ જાય ત્યારે સવાર ઉઠે ત્યારે ફ્રેશ થાય છે. કેમ? બીકોઝ they feel peace without any effort. Yes or no? સુઈ જ જવાનું છે, પ્રયત્ન કરવાનો નથી. હવે તમને મૂળ રહસ્ય સાયન્સ હવે કહું છું. આ પેલા 2 એક્ઝામ્પલ કીધા મેં તમને સમજવા માટે કે એક મેડિટેશનનું એક્ઝામ્પલ છે ને એક નેચરલ સ્લીપિંગ છે. બરાબર છે? સ્વામીજી, એક મેડિટેશન વાળાનો પ્લસ પોઈન્ટ એટલો છે કે જાગ્રત અવસ્થામાં પ્રોસેસ શરૂ કરે છે. That's it. ખ્યાલ આવી ગયો? અને પેલો જાગ્રત અવસ્થામાંથી ઊંઘી જાય છે. આટલો ડિફરન્સ છે. રિઝલ્ટ બંનેમાં સરખા છે. હવે આગળ કહું છું, હવે એનું સાયન્સ કહું છું. હવે so that this both kind of circumstances or situation, they prove that in both sanjog you are separate as a soul, as a pratisthita atma, and as a pratisthita atma you are observer at the time of body is sleeping or meditation. So the observation, through the observation, you can feel separation as per your experience, as per your level of your jnana and darshan. So that's where we are all saying that when we do meditation and we are not sleeping, then we have we are capable of feeling that we want to go beyond the mind and body and we want to be But in what soul. kind- But when we are sleeping, What we what are kind under control. what kind of feeling you feel after you go beyond? Can you explain, please? I've never felt anything. तो फिर जो आपने अनुभव नहीं किया वो बताने से क्या मतलब है? It's only information or knowledge. It's okay. સ્વામીજી, પણ ધ્યાનમાં तो તો मैं आप सबको धीरे धीरे ऊपर ले रहा हूँ. Wait, you go beyond. સ્વામીજી, मैं ચમત્કાર की बात नहीं करूँगा. ધ્યાનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા હોય છે, રાઈટ? ધ્યાનમાં ધ્યાન કરતા ચિત્ત કોન્સન્ટ્રેટ કરે ને કે જ્યોત પર કરો કે સર્ટન ફિગર પર કરો કે ગુરુ પર કરો કે તમારે જે એ ચિત્તની એકા કોન્સન્ટ્રેશન ચિત્તનું, એટલે બીજે બધે જતું હોય તે સ્ટોપ થઈને જસ્ટ એ સેટલ ઓન વન પ્લેસ. એટલે એનો ચિત્તની શક્તિઓ ખીલે છે, આખી ચિત્ત શક્તિ બધી ખીલે, કારણ કે જે વેસ્ટ થતી હતી બધે એ વેડફાઈ જતી હતી તે એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ થાય છે અને એની અસર બોડી પર થાય છે. આત્માને કશું લાગતું હોય નથી. હવે સુઈ જઈએ છે, તમે કહો છો ફ્રેશ થઈ જાય છે, બટ એમાં ચિત્તની સુતી વખત ચિત્તની એકાગ્રતા હોય છે, કારણ કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તો લાઈવ હોય છે, એનું કામ કરતો જ હોય છે. આ તો મશીનરી છે. લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્માને ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્માને બોડી સાથે ડાયરેક્ટ શું સંબંધ છે? કશો જ નહીં. તો પછી પ્રશ્ન ક્યાં રહ્યો? એટલે આ ચિત્તની ડિસ્ચાર્જમાં બધું ચિત્તનું છે. તો પછી ડિસ્ચાર્જ વાળો પાર્ટ તો સેપરેટ છે. એવું ફીલ કરવા મળે તો તમને સાયન્સ કહું છું. હવે ડિસ્ચાર્જ તમે આ બધા પાર્ટને લાઈવ માનો છો, that is your भ्रांति. हाँ, ये भ्रांति ने तोड़ो છો. ये सब बातें मैंने आपको भ्रांति तोड़ने के लिए कहा, ये प्रोसेस को बंद करने के लिए नहीं कहा है. मगर आप मानते हो मेरे को हो रहा है, मैंने किया, मेरे को नहीं हो रहा है. ये भ्रांति तोड़ने के लिए you are as a live pratishthatma, as a scientist, you are the only observer. Either meditation, either sleeping. तो स्वामी जी मेडिटेशन करो. दोनों कुदरती रचना है. सो गया वो भी कुदरती रचना और मेडिटेशन करते वो भी कुदरती रचना. तो धीरे धीरे आपको ऊपर ले गए. पहले मैं बोलता कुदरती रचना है तो आपको समझ में है?
नहीं आता. Yes, તો please. જે આ ધ્યાન વખતે બોડી એ સાધન છે, સૂતી વખતે પણ બોડી એ સાધન છે. હવે ધ્યાન કરતી વખતે ચિત્ત ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત પણ ખરું, મન બુદ્ધિ અંતસ્કરણ અને ચાર્જિંગ લાઈવ ઈગો. તો એમાં બેનિફિટ કોને ધ્યાન વખતે? કારણ કે પેલો તો સેપરેટ છે, આ કરે છે, તો ચિત્ત ડિસ્ચાર્જમાં જ થાય છે, કુદરતી રચનામાં જ થાય છે બધું. ડિસ્ચાર્જ વાળાને થોડી પીસ અનુભવ થાય છે. ડિસ્ચાર્જ વાળાને જેમ પેલું સુખ દુઃખ અનુભવ થાય છે, અહીંયા પીસનો અનુભવ થાય છે. એ બધું રિઝલ્ટ જ છે બધું. તો આ બધા લોકો બ્રહ્મલોકમાં ને બધું ફરી આવે છે, કેમ ના ફરી આવે છે? ભ્રમણામાં જ્યાં ફરવું હોય ત્યાં ફરાય. ના આ બધા બધી ભ્રમણા જ છે બધી. આની ભ્રમણા પછી ફરી આવે, જોઈ આવે, એ બધું ભ્રમણા. તો શું છે? તો કોઈ એમને કશું કહેતું નહીં, તમારે ભેગા થવું જોઈએ લોકોને. વિનુભાઈના ભાઈને ભેગા થયેલા જ ને. કોને? વિનુભાઈના ભાઈ રમણભાઈ રમણભાઈ એ તો ધ્યાનમાં, આ તો બ્રહ્મલોકમાં ને બધે જાય ફરી આવે. કયા લોકમાં એ ખબર માનતા હતા કે આ જન્મમાં મોક્ષ થાય મેડિટેશન. એની સમજ. પછી ગયા એ તો મોક્ષ ને. મારી જોડે જ આર્ગ્યુમેન્ટ અમને યાદ નથી. ભાવેશને ત્યાં આવેલા ના ના આવેલા હશે, પણ અત્યારે મને રેફરન્સ યાદ નથી આવતો. તમે કહો છો એટલે કીધું હશે, પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે, પણ મને યાદ આવજો ને રેફરન્સ. ના, એમનો એક જ કેવું કે મેડિટેશન થી આ જન્મમાં જ મોક્ષ થાય. માનવામાં શું વાંધો છે? માનવામાં આપણે કોઈને ના કહેવાય ભાઈ. તો પછી આ બધી ભ્રાંતિ જ કહેવાય. બ્રહ્મલોકમાં જાય ને પેલા કયા લોકમાં જાય, એ બધું ભ્રાંતિ. जो लोगों के पास मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरत की रचना देखने का ज्ञान ही नहीं है, वो बॉडी से बाहर ही नहीं जाते हैं. ये सब भ्रांति है. अज्ञानी कहाँ तक जा सकते हैं? रिलेटिव सत्य से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं. साइंटिस्ट जा सकते हैं, ये कहाँ से जाएंगे? ये सब कल्पना की बात है, એ લોકોની શું ગતિ થાય, એ બધું કરે. इमेजिनेशन है. कि जा क्या रहे. जिसको साइंस ही नहीं मालूम, ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स नहीं मालूम, वो कहाँ जाएगा? કારણ કે એ તો ધ્યાનથી જ એ બધું કરે નાટક. कहने का मतलब वो जो कर रहे हैं वो कुदरती रचना है, वो प्रश्न हमारा नहीं है, मगर उनका जो ज्ञान दर्शन का लेवल है, दे नेवर गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ. दैट्स इट. એમાં આત્માનું કશું નથી આવતું. લેવા દેવા જ નહીં. પછી રિલેટિવ ટ્રુથ થી બહાર જઈ શકે નહીં. એની પાસે યુનિવર્સલ ટ્રુથ નું વિઝન જ નથી, તો પછી કેવી જઈ શકે? તો કમલેશભાઈ, એવું ના હોઈ શકે કે આત્મા ડેવલપ હોય અને એને એવી રીતે બંધેલું હોય કે જ્યારે મેડિટેશનમાં બેસે ત્યારે એને દેખાય, ખાલી એટલે લઈને આવેલું હોય, એવું બની શકે? दो प्रकार के लोग हो सकते हैं. कभी किसी के पास सिद्धि होती है, सिद्धि जो उदय कर्म में लेकर आए तो खुली हो सकती है, मगर वो भी कुदरती रचना का पार्ट है. और दूसरा बात ये होती है कि अगर किसी के पास बहुत सारा डेवलपमेंट है और वो निर्मोही हो गया है और हिमालय जैसी योगी की जगह पे रहते हो, संसार से कोई मतलब नहीं है, न कोई इच्छा है, ऐसा व्यक्तियों को विशिष्ट प्रकार का डेवलपमेंट का ज्ञान होता है. उनकी आयु भी लंबी हो सकती है, 1000-2000 साल की भी हो सकती है, मगर वो एक्सेप्शनल है. फिर भी वो आत्मा को तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर वो उनके पास कोई ऐसी शक्ति है कि जो संसार में शरीर के साथ भी उस शरीर से अलग रह सकते हैं. इन अवेयरनेस अपने शरीर को सेपरेट देख भी सकते हैं, शरीर से बाहर निकल के घूम सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं. वो एक्सेप्शनल है. फिर भी मैं उसको आध्यात्म नहीं कहता हूँ, मगर इज वन ऑफ द पावरफुल मैन, इज लिटिल बिट बियॉन्ड देन द रिलेटिव ट्रूथ. रिलेटिव ट्रूथ से थोड़ा ऊपर है वो. તો સિદ્ધિ એટલે શું? સિદ્ધ કશું કર્યું. સિદ્ધિ એટલે શું? સિદ્ધ કશું કર્યું છે. કારણ કે सिद्धि का मतलब होता है जो नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं है वो आपके पास है. આ પણ એટલે શું પણ હું એની પાસે શું એક્સ્ટ્રા છે? એ શું એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે એને સિદ્ધિ કહે છે? जैसे एक व्यक्ति आपको देख के आपका भविष्य बता देते हैं, वो सिद्धि है. એટલે દર્શન ખુલ્લું છે. वो फील्ड का અચ્છા, ઓકે. ज्ञान दर्शन नहीं है, वो सब्जेक्ट टू दर्शन है. એવી રીતે કેટલી બધી વિદ્યાઓ નથી મહાવીર સ્વામી બધી મૂકી. એટલે सभी तीर्थंकरों बाय बर्थ एज अ गिफ्ट 82 लाख विद्या होती है. यस
by birth as a gift, as a status of Tirthankar. એનું કરે શું એ લોકો? Is extreme qualification, extreme status. એટલે વર્ક કરે ખરી કે વિદ્યા? ક્યારે યુઝ વાપરે નહીં, એ તો ક્યારે યુઝ ના હા? કરે, ક્યારે યુઝ કરે? નો વેલ્યુ. એ લોકોને બાય પ્રોડક્ટમાં મળે. ઉદય કર્મમાં હોય ઉદય કરે. તો એકાદ વિદ્યા ઉપયોગ કરે. ઉદય કર્મ એને ઈચ્છા ના થાય, નોટ એઝ આ ઉદય કર્મ હોય. પણ એ લોકોને મળી હોય કે પછી બાય પ્રોડક્ટમાં જ મળી જાય? બાય પ્રોડક્ટ જ હોય ને. By product. They are not beggar, okay? Yeah. They never demand. Yeah. But nature will supply because you are qualified. Right. Because you are qualified, nature will give you. You can use it or not, different subject. એ બધી ભૌગોલિક શક્તિઓ કહેવાય. બધી વિનાશી, વિના. relative, મારે તારે not permanent. Huh? મારે તારે જતી રહે. જીવતાય જતી રહે. ત્યાં જીવતા Doesn't matter. દેવ રીતે જરૂરી નથી કે રહે. તો રાવણને જે નવગ્રહો વશ હતા, નવગ્રહો એટલે પછી આગ્રહ દુરાગ્રહ જે છે એ જ ગ્રહો ને દાદા ભગવાને બતાવ્યું છે. તો વશ હતા પેલા એમને પેલા પેલાને કર્યા તો કેમને એન્જોય મેળ પડે? સિદ્ધિ બધી સાધનાથી. ગ્રહ એટલે ગ્રહના દેવલોકને સિદ્ધ કર્યા, ફિઝિકલ ગ્રહ નહીં. ગ્રહનો અધિષ્ઠાયક દેવ હોય ને, શનિદેવ, ગુરુદેવ, મંગલદેવ, એના નામ જપ ફિઝિકલ શરીરને પેલા એ કંટ્રોલ કરીને શું કરવાનું? પણ એ નામ જપ કરતા હશે કે હું કરતા હશે? આઈ ડોન્ટ નો. તમને નહીં ખબર. જે મને ખબર ના હું કઈ રીતે કરું ભાઈ, કારણ કે મારાથી ના કહેવાય. વશ થયા તો- આઈ એમ અ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન. વોટ એવર આઈ સ્પીક ઇટ્સ રેકોર્ડેડ, ઓકે? ના કહેવાય, અચ્છા. મને ખબર નથી. એ લોકો શું કરતા હતા એ ખબર નથી, પણ એ સિદ્ધિને શું કહેવાય એ મને ખબર છે. પણ હાઉ ધે કેન એપ્રોચ આ આઈ કેટલું ડોન્ટ નો. કેટલું મોટું તપ હોય એની પાછળ. હશે હશે. બસ તમને ખબર છે છતાં બોલતા નથી. मैं तो ऐसा मानता हूँ, जो रावण ने तप करके सिद्धि प्राप्त किया था, इससे ज्यादा तप तो हमारे संसारी लोग करते हैं. मैं ऐसा मानता हूँ. और प्राप्त भले वो ज्ञान है या नहीं वो अलग सब्जेक्ट है, मगर तप का तो अनुभव करते हैं. और प्राप्त क्या करते हैं? हम्म? प्राप्त क्या करते हैं? वो तो संसारी करेंगे ना. ज्ञान दर्शन रिलेटिव है तो फिर वो क्या करेंगे, मगर तप करते हैं इतना, उससे भी ज्यादा. ये मैं समझता हूँ, आप समझे ना. मगर खैर देखो, एक प्रिंसिपल जब ये सब्जेक्ट निकला है तो मैं आपको सिद्धांत बता दूं. सिद्धि किसको बोलते हैं? सिद्धि इज वन काइंड ऑफ योर स्टेटस ऑफ योर डिग्री. समझ में आया? आपके रिलेटिव ज्ञान दर्शन की डिग्री है. डिग्री समझता है? हाँ. इसको सिद्धि बोलते हैं. जैसे मैं 5वीं कक्षा में पास हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट मिला, वो डिग्री है मेरी. फिर 10वीं में पास हुआ, 10वीं की मिली. फिर 12 में पास हुआ तो 12 की मिली. फिर ग्रेजुएट हुआ तो उसकी मेरी डिग्री मिली. मगर रिलेटिव सत्य है, सब सिद्धियाँ रिलेटिव सत्य है, मगर इसको डिग्री बोल सकते हैं. मगर फिर भी टेम्पररी है, आपके लिए टेम्पररी है. कुदरत में रहेगी, आपको कर्म के हिसाब से मिलेगी. कर्म खत्म हो जाएगा, चली जाएगी, क्योंकि कुदरत की है, आपकी नहीं है. आपको मिली है, आपकी नहीं है. यस और नो? તો આ મ્યુઝિકમાં જે અચીવમેન્ટ કરે છે, જે નથી લતા મંગેશકર જે એને બધા માં સરસ્વત, તો એ ગયા એનું ડેથ થાય પછી જતી રહે એની સાથે જતી જ રહે. કામ ખાતે? बिल्कुल जीरो, રિયલ? नो कंसर्न. તો ઘણા છોકરા નાના હોય ત્યારથી મ્યુઝિકમાં કરી શકતા હોય છે, ये लेना आया प्रकृति. તો જતી રહેશે તો ત્યારે તો કેવી ગ્રેટ રીતે? તારે ને. હા. એ કોઝ ઇફેક્ટ છે, કેમ આમ કરો છો? એટલે એને ભાવ એવા કર્યા છે કે તો continue પછી રાખવું છે. કોઝની ઇફેક્ટ તો આવવાની, ઇફેક્ટની ઇફેક્ટ નહીં આવે. કોઝની ઇફેક્ટ તો આવે, કહું છું જ ને. એટલે એને ચાર્જ કરી હોય ત્યાં. એના ડિસ્ચાર્જ થાય છે. ખ્યાલ આવે? वो जो लोग चूल के ऊपर चलते हैं वो क्या होता है? चूल के जो ऊपर, आग के ऊपर आग के चलते हैं. Is that some kind of सिद्धि? आप भी चल सकते हैं. आई एम नॉट जॉकिंग. yes. मैं आपको प्रयोग बताऊं, फिर क्या तकलीफ હા है? बताओ बताओ उसको. वो फलों का रस आता है ना, खास करके एप्पल, फलों का रस, ये हाथ पे लगा दो, अग्नि में लगाओ, कुछ नहीं होगा. प्रयोग करना उंगली से. સારું કહેવાય, તાળે ત્યારે લગાવી દઉં. हम जानते नहीं है क्या करेंगे. એટલે ફ્રૂટ જ્યુસ.
लिक्विड एकदम। Juice, yeah. वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ वो क्या कहते हैं, पेट्रोल डालता हूँ, मगर पेट्रोल नहीं डालते हैं, Fruit का juice. वो ये डालते हैं, राइट। उसका कोट कर देते, क्या कर देते, कोट। समझ में आया? फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालेंगे लास्ट, उसका कोट करने के बाद तो पेट्रोल जलेगा, हाथ नहीं जलेगा, पाँव में भी लगा, अब चल के जा सकते हैं अंगारे के ऊपर। ठीक है, ये सब साइंस है। ये कोई चमत्कार नहीं है, मगर आम लोगों को फिर धार्मिक श्रद्धा के लिए चमत्कार लगता है। इट्स ओके। मैंने बहुत सारी बातों का बचपन से मैंने बहुत स्टडी किया है और मैं हर बातों में साइंस देखता हूँ। बोले दुनिया क्या देखती है वो उनका सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट ये साइंस है बस। शायद मैं जानूँ या न जानूँ वो दूसरा सब्जेक्ट है, मगर ये कोई चमत्कार नहीं है। और दादा भगवान ने भी ये कहा दुनिया में कोई चमत्कार ऐसी चीज है ही नहीं, साइंस है, आप नहीं जानते हो चमत्कार लगता है। દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા કે મન એ મરેલા મરદા જેવું છે, એને આપણે જાગૃત ના કરીએ તો આપણને કશી અસર થાય નહીં. તે મન આપણે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું છે, ડિસ્ચાર્જ આત્માનું છે, તો એને કેવી રીતે ચાર્જ વાળો ના ભરે તો મળદું જ છે ને. એ બરાબર છે. તો જે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું નવું મન છે એને કેવી રીતે બંધ કરાય? સેપરેશન. એ મનને કુદરતી રચના જોયું, વી હેવ નો કન્સર્ન. મને વિચાર આયા, મારા વિચાર છે, મને ખરાબ વિચાર આયા તો તમે ઇન્વોલ્વ છો ને, તમે ઓબ્ઝર્વર છો એઝ આ કુદરતી રચના, તો યુ હેવ નો કન્સર્ન. એટલે એને આપણે જે ચાર્જ મન કારણ કે ચાર્જ મન જીવતું છે, ડિસ્ચાર્જ નહીં. ચાર્જ મનને જ એને સાયલેન્ટ કરવું હોય. સાયલેન્ટ એટલે કુદરતી રીતે દેખો તો સાયલેન્ટ જ છે ને. બધું એક્સેપ્ટ કરો એટલે ચાર્જ મન કોઈ દિવસ અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી સાયલેન્ટ ના થાય. ચાર્જ મન અને ડિસ્ચાર્જ મન હંમેશા મિકેનિકલ હોય. હવે સાયલેન્ટ ના થાય એટલે એક્ટિવ મોડમાં હોય. એની પાસે જે જ્ઞાન દર્શન છે ઉપયોગ કર્યા જ કરે. મિથ્યા હોય તો મિથ્યા, સમ્યક હોય તો સમ્યક. એ ક્યારે સાયલેન્ટ ના હોય. મેં પહેલા કીધું કે બોડી અનકોન્શિયસ થાય તો પણ ચાર્જ ઈગો, ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ક્યારે અનકોન્શિયસ ના થાય. તમને કેટલાય લોકોને ઓપરેશનની અંદર અનકોન્શિયસ કર્યા પછી ખ્યાલ હશે, અંદર એ પોતે જુએ છે કે ડોક્ટર આમ કરે છે, ડોક્ટર આમ કરે છે, બધું દેખાય એને. ખ્યાલ ફીલ થાય, નોટ ફિઝિકલ આઈ, આંખથી નહીં ને ફીલ થાય. પેઇન ખાલી ફીલ ના થાય. એવરીથિંગ દે નો. સમજાય છે? બીકોઝ ઓફ ધ લાઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ કન્સર્ન વિથ ધ આઈ. આ બધું સાયન્સ છે, આ કોઈ ચમત્કાર. પણ જે વ્યક્તિ પોતે ઓપરેશન કરવા જાય અને ફિયર ફીલ કરે તો પછી અનુભવ ના થાય. યાર ઇન્વોલ્વ વિથ ધ બોડી. પણ જે લોકો બોડીથી સેપરેટ રહે છે જાગૃત અવસ્થામાં, બાય એની વે, એવું નથી કે વિજ્ઞાન હોઈ શકે, પણ છૂટા રહી શકે છે અને એને એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવે છે અને બોડી શાંત થઈ જાય છે. પછી ઓપરેશનમાં જાય, ડૉક્ટર ઓપરેશન કરે, બહાર લાવે, આ બધું જ એને ફીલ થાય. સમજાય છે? હું પેશન્ટની વાત કરું છું. ફીલ થાય પણ પેન ફીલ ના થાય. ધેટ ઇઝ અ લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. એનો અંત ક્યારે આવે? જ્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે? ના, પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો અંત કેવળ દર્શન થાય ત્યારે. અજ્ઞાન ઝીરો થઈ ગયું એટલે કેવળ જ્ઞાન થયું ને? ના, કેવળ જ્ઞાન નેક્સ્ટ બર્થમાં થાય. બીજ પડે એટલે કેવળ અજ્ઞાન નાશ થયું એનું નામ કેવળ દર્શન. અને કેવળ દર્શન થાય તો કેવળ જ્ઞાનનું બીજ પડે, એનું નેક્સ્ટ બર્થમાં, હ્યુમન બર્થમાં રિઝલ્ટ આવે. આ આખી સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે. માટે લાસ્ટ બર્થમાં કોઈને પુરુષાર્થ હોતો નથી. એવરીથિંગ ઇઝ ઓટોમેટિક. નો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, નો લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, ઓનલી મિકેનિકલ બોડી એન્ડ પ્યોર સોલ. The end of the body, the pure soul goes to the moksha. No reincarnation because of no cause. That is the science. And very simple science. ये बातें कोई नहीं करती क्योंकि किताबों में नहीं है, न वेदांत में है, न आगम में है. कहाँ से करेंगे? इंफॉर्मेशन है, साइंस नहीं है.
दादा भगवान ने खुद कहा, ज्ञान मतलब अनुभव ज्ञान ज्ञानी के हृदय में होता है। लोग हृदय में समझे नहीं, लोग ये हृदय में समझे। ये हृदय नहीं, ज्ञान दर्शन में। ये भाषा होती है, भाषा को आप इतना सिंपल मीनिंग मत लो। ये हृदय में ज्ञान होता है कभी? हृदय का मतलब ज्ञान दर्शन। हार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज अ ज्ञान दर्शन, बिकॉज विद दिस हार्ट यू क्रिएट द न्यू बर्थ। और ये जो है ये तो मैकेनिकल है, ये लाइव नहीं है, ये तो अपने आप खत्म हो रहा है। इसमें कोई प्रोग्रेस है और अचीवमेंट भी नहीं है। अचीवमेंट कहाँ है? लाइव प्रतिष्ठात्मा में, उसमें उसका ज्ञान दर्शन होता है। वो ज्ञान दर्शन में ये पूरा ब्रह्मांड का रहस्य होता है। कोई पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। સ્વામીજી, તો સાક્ષી ભાવ કહેશે ક્રમિક માર્ગમાં, આ તો હમણાં જ્ઞાન અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન, પણ અહંકાર એ કરીને નથી કે સેપરેટ રહે કે હું આનાથી મુક્ત. એ સરદાર પટેલને પેલો આ થયું હતું ને કાઢ્યો તો ને કશું પેઇન નહોતું થયું, એ સાક્ષી ભાવથી થયું હશે. સાક્ષી ભાવ એટલે માનસિક હઠાગ્રહ, હઠાગ્રહ અને ફિઝિકલ હોય તો શારીરિક હઠાગ્રહ. 6 મહિના સુધી ફૂડ નથી ખાવું, બસ એ શારીરિક હઠાગ્રહ. માનસિક હઠાગ્રહ તમે કાપી નાખો તો મને કઈ નહીં થાય, માનસિક હઠાગ્રહ. હે એટલો અહંકાર હોય, discharge અહંકાર જ હોય. ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી, બોથ ટુ ટાઈપ ઓફ ઈગો. દાદા ભગવાને એવું કહ્યું હતું, ડિફરન્સ બિટવીન પુરુષ એન્ડ સ્ત્રી. ઓકે, કે સ્ત્રીને 2 હાર્ટ હોય, પુરુષને એક જ હાર્ટ. એ સમજાવો. પુરુષને 1 હાર્ટ હોય, સ્ત્રીને 2 હાર્ટ હોય. એ તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, એમાં શું ડીપમાં જવાનું છે? એટલે સિમ્પલ પણ કેમ સિમ્પલ થાય સમજવાનું? કહું, ચાલો કહી દઉં. આ કુદરતી રચના જ છે ને? ના ના નહીં? કુદરત એ આન્સર નહીં, સાયન્સ તો જોઈએ ને. કુદરતી રચના તો છે, એવું પૂછે આપણે એની પાછળનું સાયન્સ જોઈએ. કુદરતી રચના છે તો આપણે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? 1 હાર્ટ છે તોય કુદરતી રચના, 2 છે તોય, અને એકે નથી તોય. પ્રશ્ન એ છે નહીં, એની પાછળનું સાયન્સ શું છે. હું એમને સાયન્સના માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે 1 હાર્ટ ને 2 હાર્ટ કેમ? लेडीज के अंदर लेजा फॉर्म ऑफ लेडी, ओके, फॉर्म ऑफ लेडी के अंदर कपट और लोभ ज्यादा होता है, और पुरुष के अंदर एज अ जेंट्स अहंकार और मान. લેડીઝોને માન તો હોય છે. बताओ બધાને હોય. बताओ बताओ. तो ये क्रोध और मान के कारण पुरुष हमेशा एक्साइटेड होता है, तुरंत बोल देता है. वो रिजर्व रख सकते हैं बात को. और स्त्री ऐसी होती है कपट और लोभ के कारण. आपने अगर अपमान किया है, गुस्सा किया है, या उनकी बातों को नहीं माना है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगी, ये बात को स्टोरेज में रखेंगी. टाइम आएगा तो टाइम बम निकालेंगे. अभी लाग में आए, पहले तो बहुत कहा, जब आप जॉब पर से आए तो बोला बूट निकालो, पानी लाओ, चाय लाओ. अभी तुम बीमार हो गए, अभी 10 बार पानी मांगूंगे, जवाब भी बोलते नहीं है. मैं नहीं लाऊंगा ऐसा बोलेंगे भी नहीं, और पानी भी नहीं दूंगे, बोलते. फिर कोई कहेंगे कि पानी को मैंने कहा मना किया है. नहीं समझ में आया? मैंने मना नहीं किया है. यस और नो? कपट किसको बोलते हैं? तो ये जो स्टोरेज है ने, वो लेडीज के पास है, तो वो सेकंड हार्ट बोलते हैं. पुरुष के पास स्टोरेज नहीं है. એટલે નોંધનું સ્ટોરેજ નહીં. यस, નોંધ Noted in the heart. noted in the heart, whatever happens. Noted.
जैसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। હા કે કઈ કઈ બી એવું કરેલું એમ પૂછે છે મગનભાઈ। एक बताओ। બતા બધા तो मैं उसका एग्जाम्पल दे दूं पहले कि ऐसा कैसे होता है, दो हार्ट कैसे होता है और काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, पतिदेव जॉब करके या प्रोफेशन से घर पे आए और पत्नी का मूड है आज बाहर घूमने जाना, खाने के लिए, पिक्चर के लिए या घूमने जाना है, गार्डन में, जो भी कहो, दे वांट टू गो आउटसाइड। ये उसका मूड है, मूड समझते हैं ना। और जब हस्बैंड आते हैं तो पानी वानी देते हैं, फ्रेश करने के लिए कहती है, फिर धीरे से कहती है आज हमको बाहर जाने का मूड है, खाना भी बाहर खाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे और घूम के फिर वापिस आ जाएंगे। ऐसा पत्नी ने पति को बोल दिया। फिर पति ने सुना और फिर उत्तर दिया आज मेरे को मूड बाहर जाने का नहीं है। फिर क्या होगा, आपका मूड अलग, उनका मूड अलग है। फिर क्या होगा, रिएक्ट तो कर नहीं सकते, ये स्टोरेज में रखोगे, ये ऐसा करते हैं, मेरी बात मानते हैं नहीं है, એ તો રિએક્ટ તો ઘણા કામ આજે તો કઈ દે પડશે। तो फिर स्टोरेज रखते हैं। फिर 2-3 महीने के बाद हस्बैंड फोन करता है कि मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, हम फटाफट तैयार होके हमारे फ्रेंड की पार्टी है उसमें जाना है, तो हम दोनों को बुलाया है तो जाना पड़ेगा ने। ऐसे फोन करके ऑफिस से बता दिया, फिर फोन रख दिया। अभी वो स्टोरेज से निकालते हैं, अभी मौका आया है मना करने का, आज मेरा भी मूड बोलते हैं। मगर ये इतने स्मार्ट होते, कपट के आधार से इतने स्मार्ट होते हैं, जो हस्बैंड ने प्रयोग किया वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। वो कहता है क्या कहेंगे, मेरे को तो आने की बहुत इच्छा है मगर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पुरुष समझ जाता है चलो कोई बात नहीं तुम आराम करो, और फिर वो जाएगा, फिर टीवी चालू कर दिया, फिर खाना वाना खाया, बस स्टोरेज का स्टॉक खत्म हो गया। तो दो हार्ट होते हैं लेडीज को, मगर ये रिलेटिव सत्य है, इसमें अध्यात्म का देखने रिलेटिव सत्य है। आपको नहीं होता नहीं, अब तो है नहीं। क्या नहीं, अब तो लेडीज भी काम करती है ना, भले फिर भी फिर भी नहीं, मैं बताऊँ आपको, मैं इसके पीछे का राज बताऊँ। ऐसा नहीं कि आप काम करते नहीं करते, इसे अच्छी बात है, काम करते तो नथिंग रॉन्ग, और अच्छी बात है फॉर सोसाइटी एंड फॉर फैमिली, इट इज़ गुड थिंग्स, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। बट मैं बंधारण की बात करता हूँ, वाई लेडीज बनती है और जेंट्स बनता है, उसमें कुदरत का कानून क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। इसीलिए आप काम करते कि नहीं करते वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर ये लेडीज और जेंट्स का जो आपको बॉडी मिला है उसका साइंस बताता हूँ। तो क्रोध मान माया लोग 4 प्रकार की कैटेगरी होती है कर्म में, रिजल्ट के कर्म में। ओके, कॉज कर दिया, अभी रिजल्ट जो आने वाला है क्रोध मान माया लोग के रूप में, उनमें 4 चीज होती है। इसमें जिन व्यक्ति के पास 55% क्रोध और मान होता है, इनको पुरुष बॉडी मिलता है 55 प्लस, और जिसको 55 प्लस लोभ और कपट होता है उनको स्त्री बॉडी मिलता है। ये साइंस की बात करता हूं, आप समझे भैया। फिर 55% वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्या है, अगर आपके पास 55% है क्रोध कपट और लोभ, और क्रोधमान तो है ही 45%, ठीक है, तो मैच्योर किसको बोलते हैं, स्त्री या पुरुष, +75%। मैच्योर किसको बोलते हैं,
क्रोध मान 75% प्लस है तो मैच्योर जेंट्स बोलेंगे, और कपट और लोभ 75% प्लस है तो मैच्योर स्त्री बोलेंगे। ठीक है, मगर 55% वो बॉर्डर लाइन समझते हैं? तो 55% आपके अंदर क्रोध और मान है तो आप पुरुष तो बनेंगे, मगर वो बायला छाप पुरुष कहेंगे। और स्त्री के अंदर 55% का कपट और लोभ है तो वो भाईड़ा छाप स्त्री बनेगी। नहीं समझ में आया? समझ में आया? भी मैं क्या कहूँ इसको अभी तो? नहीं, मतलब मेरे को वो वर्ड नहीं मालूम है। पुरुष अभी आप बताओ। जैसी होती है, और ऐसे स्त्री जैसी होती है। नहीं, ये स्त्री है पुरुष जैसा बिहेव करती है, हाँ, और ये पुरुष है स्त्री जैसा बिहेव करता है। चलता भी ऐसे। like that way, you understand, like that way, क्योंकि वो पुरुष तो है 55% में, मगर उसकी बिहेवियर स्त्री जैसी है, क्योंकि 45% तो वही है। ऐसे स्त्री में सेम है कि स्त्री में कपट और लोभ 55 है, मगर 45 क्रोध और मान तो है, तो पुरुष जैसा बिहेव करते हैं, बॉडी स्त्री की मगर बिहेव करते हैं पुरुष जैसा, सेम। तो ये साइंस है, आप समझे? तो साइंस को समझने की कोशिश करो।